Ms. Pooja Upadhyay, admired for her exceptional teaching skills and warm personality. With a strong commitment to nurturing young learners, she combines effective classroom management with a student-friendly approach, creating an environment where children feel both inspired and supported. Her ability to balance discipline with empathy has earned her the respect and affection of students and teachers alike, making her a cherished presence in the school community. Beyond her classroom, Ms. Upadhyay has made significant contributions to extra-mile education and training, moderating numerous online sessions that have enriched the learning experience for many. Recognized as an effective teacher and mentor, she continues to leave a lasting impact through her dedication, innovation, and heartfelt passion for education. Hearty welcome, Ms. Pooja. Please proceed. The stage is yours. So good evening all educators. So we are waiting for a quite months for getting our master back into the pavilion. So today Vinod sir is back. So at present Hindi subject has been made compulsory. So almost everywhere the grammar portion is very important. So let us welcome Sir Vinod sir. धन्यवाद सर. So good evening everybody, hearty welcome, namaste for joining this Wednesday being working day for all the schools, but you are very enthusiastic in learning and looking forward to Vinod's section we know. So Miss Pooja has joined. Miss Pooja, you can start after me, okay? So please wait. I will do the introduction. After that, you can continue. So Vinod sir is here. After, as Biju sir has said, after some time he has joined us, and everybody is looking forward to his session. We know, and thank you so much, sir, for offering this session. In fact, there are lots of queries happening in the group, in our WhatsApp group. About R1 and R3. Lots of clarity is required. So definitely today, sir will make it very clear, and after that you can go forth, with much more confidence as you were looking forward to. Thank you so much, Vinod sir, for joining. And Pooja ma'am, let's go introducing, Vinod sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So I will introduce Vinod sir. Please Yes, hold on. sir. Yeah. Okay. Biju sir has already spoken, so we will right away go to Vinod sir, and Okay, sir. then we listen to him. जी. Okay, sir. डॉक्टर विनोद प्रसून हिंदी शिक्षण में अपने नवाचारों व सहज सरल युक्तियों के सफल प्रयोगों के कारण जाने जाते हैं। व्याकरण पर आधारित आपके अवधारणा गीत अपने सरल शब्दों व मधुर लय के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं। आप पिछले 3 दशकों से अध्यापन व लेखन से जुड़े हैं और हिंदी संसाधक, विषय विशेषज्ञ के रूप में CIET, NCERT, CBSE, COE तथा भारत सहोदय कॉम्प्लेक्स आदि से जुड़े हुए हैं। आप NCERT की कक्षा 1 व 2 की हिंदी पाठ्य पुस्तक सारंगी की निर्माण समिति के सदस्य भी हैं। आप वर्तमान में दिल्ली पब्लिक स्कूल, ग्रेटर नोएडा में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। आपका अपन सूत्र अपनत्व प्लस प्रेरणा प्लस नवीन प्रयोग और पढ़ो और पढ़ाओ के दर्शन को हजारों शिक्षकों ने सहर्ष अपनाया है। आप न्यू सरस्वती हाउस प्रकाशन, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित कक्षा 1 से 8वीं तक की चर्चित पाठ्य पुस्तक श्रृंखला उन्मेष व उद्गम तथा कक्षा 1 से 10वीं तक की व्याकरण पुस्तक सार्थक हिंदी व्याकरण के लेखक हैं। आप एक कवि के रूप में आकाशवाणी, दूरदर्शन व अन्य चैनलों से भी जुड़े रहे हैं। प्रणय प्रसून, गीत संग्रह, अक्कड़ बक्कड़, बाल गीत संग्रह तथा मेरे उसके बीच गजल संग्रह आदि आपकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। आप हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश में आयोजित हिंदी कार्यशालाओं एवं साहित्यिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। आपको साहित्य श्री सम्मान, हिंदी भाषा सेवा सम्मान, ग्लोबल डायमंड अवार्ड,
डीपीएस सोसाइटी द्वारा रोल मॉडल टीचर अवार्ड, हिंदी की गूंज द्वारा साहित्यकार सम्मान 2020, साहित्योदय द्वारा हिंदी सेवा रत्न सम्मान 2021, सीबीएसई भारत सहोदय द्वारा स्टार रिसोर्स पर्सन अवार्ड, एकलव्यम व काव्य कॉर्नर पंजीकृत द्वारा एकलव्यम हिंदी सेवी सम्मान 2021 तथा न्यू सरस्वती हाउस प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा सरस्वती शिक्षक सम्मान एवं हिंदी साधक सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर प्रसून, आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया आगे बढ़ें, यह मंच आपका है। बहुत धन्यवाद सर। Yeah, thank you so much. And also to add, dear participants, Vinod sir is also a part of the R3 textbook, which you all are having. And we are very धन्यवाद सर। blessed to have him on board with us. Thank you so much, sir. And Pooja ma'am, you can start off. अब मैं हमारे पथ प्रदर्शक और हम सबके प्रिय श्री विनोद प्रसून जी का पुनः स्वागत करती हूँ और उन्हें इस मंच पर संसाधन कार्यकर्ता के रूप में जुड़कर इसे खास बना दिया है। मैं आपका पुनः स्वागत करती हूँ और आज का जो हमारा विषय है नवाचारी व्याकरण शिक्षण की सहज सरल युक्तियां आदि के बारे में हम सबको अपने विस्तृत ज्ञान से अवगत कराएंगे और हम सब आपके ज्ञान से प्रकाशित होंगे। ओवर टू विनोद सर। धन्यवाद पूजा बहन। आदरणीय सलाम सर, बीजू सर एवं उपस्थित सभी हिंदी सेवी बहनों और भाइयों, मेरा सौभाग्य है कि आज पुनः आपसे संवाद करने का अवसर मुझे मिला है और निश्चित रूप से आज हम बहुत सारी चर्चा करेंगे। हम नवाचारी व्याकरण शिक्षण को कैसे मतलब सहज सरल युक्तियों से सजाया जाए उस पर बातचीत करेंगे। हम R1, R2, R3 पर बातचीत करेंगे, कैसे सहज बनाया जाए और कैसे हम कार्य करवाएं, मूल्यांकन हम कैसे करें, R3 का मूल्यांकन किस प्रकार होगा। तो बहुत सारा हम आज चर्चा करेंगे, बहुत सारी चर्चा होंगी और निश्चित रूप से आपकी सक्रिय भागीदारी कार्यशाला को मिलेगी, इस वेबिनार को मिलेगी। तो निश्चित रूप से कार्यशाला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगी, ऐसा विश्वास है और मेरा विश्वास बिल्कुल सही है। आप बताएं मेरा विश्वास सही है, क्योंकि हम सब मिलकर चर्चा करेंगे और सब मिलकर जब चर्चा करते हैं ना तो निश्चित रूप से कोई भी कार्यक्रम चरमोत्कर्ष छूता है। तो उससे पूर्व हम अपने अपने आराध्य को नमन कर लें, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व अगर हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कार्य फलित होता है। तो सभी अपने अपने आराध्य को नमन कर लें, उसके उपरांत हम शुरू करते हैं। परम श्रद्धेय मां शारदा को नमन करता हूं, आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को नमन करता हूं और बिना समय गवाए हम अब शुरू करते हैं आज की कार्यशाला। पीपीटी में शेयर कर रहा हूं, आप देखिएगा, आपको दिखाई देगी पीपीटी आज? जी सर दिख रही है जी। हम अब सबसे पहले हम क्या हैं इसको जानते हैं, छोटा सा गीत है और उसके बाद हम चर्चा करेंगे बिल्कुल व्याकरण शिक्षण एवं लयात्मक नवाचार पर। लयात्मक नवाचार होगा, नवीनतम प्रयोग होंगे, आप देख रहे हैं नवीनतम प्रयोग होंगे। निपात गीत है, R2 में है, यानी द्वितीय भाषा के रूप में है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं हम हैं क्या, है ना। अध्यापन हमसे क्या आह्वान कर रहा है और जो युग की कुछ शैक्षणिक चुनौतियां हमारे आगे हैं उनका हम कैसे सामना करें, उस पर हम इस गीत के माध्यम से पहुंचेंगे। देखिएगा, अध्यापन का कहता जो निष्ठा से सुनिएगा, अनुशासित अध्ययनशील अध्येता सा रहिएगा, अन्वेषण अपनत्व सहित आदर्श भरे हो प्रण में, रहे अद्यतन नवाचार के रंग भरे शिक्षण में, ध कहता है ध्येय हमारा जुड़ा हो अंतर मन से, शिक्षण को जोड़े सौहार्द मानवता जनगण मन से, शिक्षण को जोड़े सौहार्द मानवता जनगण मन से, ध्वजा बने समरसता और सद्भाव लिए जो फहरे, हम सरिता हो संस्कार की ना पानी हो ठहरे। तो क्या कह रहा है, ध क्या कह रहा है, हमसे क्या आह्वान कर रहा है। अगर हम इस आह्वान को स्वीकार करते हैं तो हम नवाचारी भी बन जाएंगे। हमारे आगे जो आज चुनौती है, शैक्षणिक चुनौतियां हैं,
उनका भी हम सामना आसानी से कर पाएंगे। आगे देखिएगा, धैर्यशीलता जैसा गुण भी मन महकाता जाए, धुरी देश की है हम भी यह हमें बताता जाए, यह कहता है युग निर्माता बन करके दिखलाए, कक्षा में गढ़कर चरित्र हम उजला देश बनाए, कक्षा में गढ़कर चरित्र हम उजला देश बनाए। चाहे कुछ भी पढ़ा रहे हो, ध्यान रहे इस बात का कि हमें कक्षा में चरित्र गढ़ना है। यहां तक कि व्याकरण भी पढ़ाएं तो चारित्रिक उज्ज्वलता हमारे सामने हो, हमें चारित्रिक उज्ज्वलता का पाठ पढ़ाना है। अगर हम उस ध्येय को लेकर कक्षा में प्रवेश करते हैं तो निश्चित रूप से हम देश को गढ़ रहे होते हैं, उस समय चरित्र गढ़ रहे होते हैं, देश को बना रहे होते हैं। बने योजनाबद्ध योग्य हम, यह भी कहता है, यायावर बन संग समय के शिक्षक ही बहता है, पुनीत पावन कर्मों का पाठ पढ़ाया करता, पूजित सेवा है अध्यापन यह बतलाया करता, कहता प्रेरक बनो प्रेरणा बन मन खूब सजाना, बन प्रयोग धर्मी अधिगम को बिल्कुल सहज बनाना। तो आज चुनौती है कैसे हम प्रयोग धर्मिता लाएं, कैसे हम लर्निंग को, अधिगम को बिल्कुल सहज बनाएं। R3 वाले बच्चे हमारे सामने हों तो उनको हमें कैसे अधिगम बिल्कुल सहज बना के प्रस्तुत करना है, बिल्कुल जैसे उनके दिल में उतर जाए वो अधिगम तो हमें बनाना है ना। जो पाठ्य सामग्री हमारे सामने है वह तो है ही, अगर पाठ्य सामग्री हमें अपने आप निर्मित करनी पड़े, कोई पाठ बनाना पड़े तो उसको बनाएंगे, लेकिन अधिगम को बिल्कुल सहज बनाना है ना। और न कहता है नवाचार से पाठ सहज करना है, जीवन कौशल की सुगंध से अंतर मन भरना है, नौ नवीनता नौ निर्मलता से मन को महकाना, नौ कहता आगे बढ़ युग को नूतन राह दिखाना, नौ कहता आगे बढ़ युग को नूतन राह दिखाना, आए हम अध्यापन का आह्वान हृदय से जी लें, अध्यापन के चरणामृत को श्रद्धा के संग पी लें, अध्यापन के चरणामृत को श्रद्धा के संग पी लें। तो हम बहुत पुनीत सेवा कार्य कर रहे हैं बहुत खूब सर, बहुत खूब। और मुझे विश्वास है सभी भाई बहनों को यह गीत पसंद आया होगा। एक बार आप चैट बॉक्स में आके मुझे बता दें आपको कैसा लगा। बहुत सुंदर आपकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई सर और ऑलरेडी प्रतिक्रियाएं जो है आ रही हैं। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार जुड़ते रहिए, देखिए संवाद होता रहेगा, है ना। आप चैट बॉक्स के माध्यम से संवाद करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी की प्रतिक्रिया आने लगी, बहुत बहुत जी धन्यवाद। सर। तो अध्यापन हमसे कह रहा है कि आज समय है हमें उस चुनौती को स्वीकार करना है और चुनौती के अनुकूल अपने को ढालना है ना। और हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए, अधिगम सहज हो और चरित्र गढ़ा जाए। दो उद्देश्य लेके हम जाएं कक्षा के अंदर, अधिगम को सहज बनाना है और जो पाठ्य सामग्री हम दे रहे हैं बच्चों को उसके साथ चरित्र गढ़ते हुए चलना है, चारित्रिक उज्ज्वलता होनी चाहिए, है ना। अगर आज देश के पास चारित्रिक उज्ज्वलता होगी, कल जो हमसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं कल वो देश के भावी नागरिक बनेंगे। अगर वे भाषाई संस्कार लेके जाएंगे, अच्छी भाषा के संस्कार लेके जाएंगे, है ना। आज चुनौती है, अभी पिछले दिनों आपने देख लिया, है ना। उस चुनौती को स्वीकार करना है, बच्चों के अंदर वो भाषाई संस्कार भरने की आवश्यकता है। भाषाई प्रयोग के प्रति मतलब एक उनके मन में शुचिता होनी चाहिए। जब मुंह से शब्द निकले ना तो वो शुचिता कहीं अंदर आनी चाहिए। उस शुचिता को भी आज हम इस बड़े मंच पर हम कह रहे हैं कि हमारा दायित्व है बच्चों के अंदर भाषाई शुचिता, चारित्रिक उज्ज्वलता हम भरेंगे और आगे भेजेंगे, ताकि आने वाले समय में जो भाषा सुनाई दे, है ना, बड़े बड़े मंचों से जो भाषा सुनाई दे वो शुचितापूर्ण भाषा हो, मर्यादित भाषा हो। आगे आगे बढ़ते हैं, व्याकरण शिक्षण पर आते हैं सीधे, है ना, क्योंकि आज चर्चा बहुत है। नवीनतम प्रयोग है, निपात गीत आपके सामने मैं रख रहा हूं, लयात्मक नवाचार कैसे व्याकरण को सरस बनाता है। शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि व्याकरण कैसे सरस बने। R1 R2 का अगर व्याकरण हम देख रहे हैं तो कैसे सरल बने, क्योंकि R3 में तो मौखिक अभिव्यक्ति पर बल है, वहां पर हमें सहज रूप में व्याकरण भी है तो बहुत सहज रूप में पढ़ाना है, व्याकरण का मूल्यांकन नहीं है। लेकिन अगर व्याकरणिक अवधारणाओं के संस्कार
हमें R3 में भी भरने हैं बच्चों के अंदर, तो फिर हम अपनी तरफ से उनको कैसे सिखाएंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन देखिएगा क्या व्याकरण में मैं जो आज आपसे बात कर रहा हूं कि चारित्रिक उज्ज्वलता, भाषाई शुचिता कैसे हम गीत के अंदर भी लाएं, अवधारणा सिखाएं व्याकरण की, लेकिन साथ में हम इस पक्ष को भी ध्यान रखें कि हमें भावात्मक पक्ष से भी कहीं बच्चों को छूना है। वो जो भावात्मक पक्ष है वो बहुत ही आवश्यक है। अब देखें कैसे, आप देखिएगा इस गीत को, ये गीत है, व्याकरणिक गीत है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। सहज अवधारणा बोध है, आनंदपूर्ण अधिगम है, जॉयफुल लर्निंग है, लयात्मक नवाचार है, जीवन कौशल है, लाइफ स्किल है, इसके अंदर युद्ध नहीं बुद्ध का दर्शन भी है। हम निपात पढ़ा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं युद्ध नहीं बुद्ध, बुद्ध का दर्शन हो, वसुधैव कुटुंबकम का आह्वान हो। कैसे, क्या संभव है कि व्याकरण पढ़ाते समय हम इन चीजों को भी ले आए गीतों में? तो संभव है। हमें थोड़ा सा चिंतन करना है, अपने भाई बहनों का ध्यान चाहूंगा। देखिएगा गीत कैसे बहेगा, गीत अवधारणा को लेके, और कैसे फिर आगे जब समापन होगा तो वहां कैसे संस्कार उसके अंदर बहेंगे, है ना। और जब हमारी शैक्षणिक सामग्री में, पाठ्य सामग्री में इस प्रकार के संस्कार होंगे तो बच्चों के अंदर पहुंचेंगे। बस हमें संकल्पित होना है। देखिएगा, छोटे छोटे शब्द निराले ये निपात कहलाते हैं, शब्दों संग जब ये जुड़ जाते अर्थ बहुत बल पाते। धारक भी कहलाते, धारक भी कहलाते, बलशाली भी है कितने, अर्थ बड़ा सा कर देते हैं चाहे हो छोटे जितने। ही भी तख्तों में भाषाई बल का जादू होता है, शब्दों के संग आनिपात एक अद्भुत ताकत बोता है। ही भी तख्तों मात्र और भर या इनके संग है केवल, सातों के सातों के अंदर भरा बहुत भाषाई बल। मैंने गाया को मैंने ही गाया कहकर दिखलाएं, ही की ताकत पता चलेगी उसको भी फिर बतलाएं। ही का आशय निश्चित पक्का तो दे देता जोर बड़ा, भी जोड़ की ताकत देता तक सीमा के साथ खड़ा। केवल मात्र बस भर भी सीमा तय करके देते हैं बल, नदी अर्थ की बहती जाती बड़े वेग से तब कल कल। मैं मिलने आऊं को मैं भी मिलने आऊं बोलो जी, दोनों में क्या अंतर आया मन में अपने तो लो जी। कह तो दे उसने समझाया को उसने तक समझाया, बतलाएं क्या बदल गया जो अर्थ समझ में कुछ आया, अर्थ समझ में खुद कुछ आया। खुद के वाक्य बना कर देखे अंतर पर हो ध्यान सदा, सहज रूप में आ जाएगा कठिन नहीं यह पाठ बड़ा। ताकत इनमें बहुत निराली, वाक्य अर्थ को बल देते, अपनी ताकत और मदद के बदले में ना कुछ लेते। यह दुनिया भी गर्निपात सी सज्जन और उपकारी हो। अब आप देखना कैसे संस्कार आएंगे। अवधारणा आ गई है कि अवधारक ये हैं और वाक्य के अर्थ को बल देते हैं। अब संदेश क्या है? व्याकरण पढ़ा रहे हैं, जीवन कौशल का ध्यान रखे हुए हैं, वो जो चारित्रिक उज्ज्वलता है, वो युगानुकूल जो संदेश है कैसे इसमें आएगा, कैसे बहेगा, कैसे बच्चों के दिलों में बहता हुआ चला जाएगा। यहां देखें, यह दुनिया भी गर्निपात सी सज्जन और उपकारी हो, भाव भरे हो जिसमें निश्चल जो हृदय से प्यारी हो। युद्ध नहीं बस बुद्ध यहाँ हो, खिलता भाईचारा हो, जीने लायक हो यह दुनिया चाहत का उजियारा हो। प्रण लें हम भी जीवन में अवधारक से हो जाएंगे, निश्चल सेवा भाव लिए हम यह जग नया बनाएंगे जी, यह जग नया बनाएंगे जी, यह जग नया बनाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। बहुत खूब सर, बहुत खूब। सर आप जो भी समझाना चाहते हैं ना, ऐसे कविता के माध्यम से ये इतनी इजी और इंटरेस्टिंग हो जाती है कि पूछिए मत। ऑलरेडी जो है हमारे पार्टिसिपेंट्स की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सर। बहुत सुंदर रचना, अप्रीतम, आदरणीय, वंदना बहुत सुंदर, आवाज़ बहुत बहुत सुंदर। आया, रजनी बहन का, और सभी भाई बहनों की प्रतिक्रिया मुझे प्राप्त हो गई है। मैं गदगद हूँ। वास्तव में मुझे लग रहा है कि मेरा प्रयास सफल हो गया। और वास्तव में बहुत सुंदर रचना की भी है आपने सर, धन्यवाद, बहुत सुंदर बहुत। है भी। तो अगर हम
अब बातचीत करते हैं। अगर हम इस प्रकार के प्रयोग करें तो निश्चित रूप से बच्चों के अंदर हम अवधारणात्मक संस्कार तो भर ही रहे हैं, उनको अवधारणा तो आ ही जाएगी, लेकिन साथ में जो भावात्मक संस्कार हैं जिनकी आज आवश्यकता है, जैसा हमने पिछले दिनों देख लिया, मैं बार बार कह रहा हूं, है ना, हमें उसको उसमें शुचिता लानी है। उसमें अगर शुचिता आ गई, है ना, जो युवा पीढ़ी है, जो तरुण है, अगर वे भाषाई संस्कार सीख गए, उन्हें सही जगह पर कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अगर यह आ गया, तो समझिए हमारा जो लर्निंग आउटकम है ना, जो अधिगम प्रतिफल है, वह व्यापक हो जाएगा। केवल किसी एक विषय विशेष को लेके, किसी पाठ को लेके अधिगम प्रतिफल को हम सोचते रहते हैं, लेकिन अगर हम जीवन के समानांतर चलने वाले अधिगम प्रतिफल को देखें तो और उस उद्देश्य को लेके चले, तो आने वाले समय में बहुत कुछ बदलेगा। भाषाई शुचिता आएगी, है ना, चारित्रिक उज्ज्वलता कहीं दिखाई देगी। आज का यही संकल्प है, दो चीज लेके चलेंगे, भाषाई शुचिता, चारित्रिक उज्ज्वलता। व्याकरण के साथ कैसे लाए? व्याकरण पढ़ा रहे हैं, केवल सपाट, केवल अवधारणाएं नहीं पढ़ानी है, साथ में जुड़ना है, उसको हमें लेके चलना है चारित्रिक, हमें चरित्र गढ़ना है। कक्षा में कुछ भी पढ़ा रहे हैं, चरित्र से जरूर हम उसको गढ़ेंगे, बिल्कुल चारित्रिक जो उज्ज्वलता कहीं दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, आप बहुत सुंदर सुन रहे हैं, है ना, मन गदगद हो जाता है जब आप सुनते हैं ना इतना अच्छी तरह से, तो वह वास्तव में एक मेरी प्रेरणा होता है ना, तो मुझे प्रेरणा मिलती है। सर्वनाम गीत R1 में भी है, R2 में भी है, आप कोर्स ए में भी पढ़ाएंगे, कोर्स 2 जो कोर्स बी है, कोर्स ए कोर्स बी दोनों में पढ़ाएंगे। अब देखिएगा, छोटे बच्चों को पढ़ाना है। अब मान लीजिए हम बात कर रहे हैं R3 वालों की, R3 में हम कैसे पढ़ाएं? वहां हम भेद नहीं पढ़ाएं, वहां बच्चों को बस सिखा दें, तो वहां कैसे हम पढ़ाएं? वहां उनका इस पे मूल्यांकन नहीं है, लेकिन एक अवधारणात्मक संस्कार तो जाएगा ना। तो कैसे उनको सुनवा दें, रिकॉर्ड करके सुनवा दें, कैसे? नामों का जो नाम है, सर्वनाम श्रीमान है, मैं हम वह वे आप तुम, चकई की चक तुम टक टक तुम, कोई कुछ जो सो जिसका, यह ये क्या किसने किनका, उसने उन्होंने उन्हें इन्हें, कौन स्वयं खुद किसे किन्हें, कौन स्वयं खुद किसे किन्हें, इन शब्दों को पहचाने, सर्वनाम बच्चों माने, संज्ञा बार बार आए, भाषा सहज न हो पाए, सर्वनाम तब लिख देना, बदले में उत्तम लेना जी, बदले में उत्तम लेना, बदले में उत्तम लेना जी, बदले में उत्तम लेना। R3 की सामग्री, है ना, हमने गढ़ी, अपने आप बनाई। R3 के बच्चों को हम इस प्रकार करवा सकते हैं, छोटा, कि बेटा नामों के बदले जो आता है ना बेटा, वह सर्वनाम होता है ना, सिखा देंगे, कहीं प्रयोग सिखा देंगे इस प्रकार। आगे आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा। एक मिनट सर, माफी चाहूंगी, somebody scratching on the हाँ, screen, कुछ कर रहा है, please मतलब stop ये it. मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट This कोई is जुड़ the गया है, second time we क्योंकि are कोई facing. कोई अध्यापक तो नहीं कर सकता इस प्रकार, Yes, please कोई stop it. शिक्षक Please साथी check नहीं करेंगे, first. कोई हिंदी से भी भाई बहन ऐसा नहीं करेंगे। कोई बच्चा है वो अपना बाल सुलभ कर रहा है कुछ, जी सर, जी सर। बाल सुलभ शरारत है ये उसकी, है ना। कोई नहीं नहीं। सर, कई बार हमसे भी होती है। प्लीज डू चेक इट एंड डू नॉट डू, डियर पार्टिसिपेंट्स, प्लीज। Vinod sir, please stop sharing. You have to start again. Otherwise, this जी जी script जी will be there. जी। Yeah, please. Pooja ma'am, please check who was doing. We will remove that participant. जी सर। अब देखिएगा, अब ये R1 R2 के लिए कैसे, मतलब हम फिर वही संस्कार वाली बात, सहज अवधारणा बोध, आनंद पूर्ण अधिगम, लयात्मक नवाचार, जीवन कौशल, है ना, जीवन अपने तक न सिमटे, इसका संदेश कैसे? संज्ञा शब्दों को उदार बन नाम जो अपना देते हैं, उन शब्दों को प्यारे बच्चों सर्वनाम हम कहते हैं। बार बार संज्ञा आने से भाषा सहज न रह पाती, सर्वनाम तब बन जाते हैं भाषा के सच्चे साथी जी, भाषा के सच्चे साथी। सर्वनाम के 6 भेदों को आओ गा कर जानेंगे, गाते गाते परिचय होगा हम उनको पहचानेंगे। मैं हम तुम तू आप और वे, वह क्या कौन किसे किसकी,
कोई कुछ खुद स्वयं जिसे वह सबकी सब पलटन इसकी, शब्दों की यह पलटन सबको विस्मित करती जाती है। बनकर प्रतिनिधि संज्ञाओं की उसका मान बढ़ाती है जी, उसका मान बढ़ाती है। पहला भेद पुरुषवाचक है, मैं हमको हम प्रथम कहें, मध्यम तुम तू आप कहें और वह वे दोनों अन्य रहें। वक्ता श्रोता और अन्य ये तीनों ही इसमें होते। भाषा की इस फुलवारी में गंध बहुत मीठी बोते। यह वह ये वे इसे उसे जब यह वह ये वे इसे उसे सब जब संकेत किया करते। निश्चयवाचक सर्वनाम का रूप सभी है ये धरते। कोई कुछ अपनी संज्ञा का रूप नहीं बतला पाते। अनिश्चयवाचक नाम से दोनों ही बच्चों जाने जाते। कौन किसे क्या कहाँ आदि ये शब्द अगर आ जाते हैं, प्रश्न स्वयं है और प्रश्नवाचक ही खुद कहलाते हैं। आप स्वयं खुद में निजता है, अपने से जुड़ जाते हैं। अगर दिखे यह रूप वाक्य में निजवाचक कहलाते हैं। जो सो जिन वे जिस वह ये सब जोड़े के संग आते हैं। एक दूसरे बिना अधूरे ये हमको बतलाते हैं। संबंधों की यही मधुरता बहुत जरूरी जीवन में। जीवन को मुस्काने देना प्रेम और अपनेपन में। सर्वनाम कहता है हमसे काम दूसरों के आना, मदद दूसरों की करने में मन से सच्चा सुख पाना। जीवन की आपाधापी में जड़ से खूब जुड़े रहना, लेकर सेवा भाव सदा ही जलधारा बनकर बहना। सर्वनाम का गीत मधुर्य मन में खूब बसाया है। सर्वनाम क्या और भेद क्या समझ हमें सब आया है। जीवन का भी पाठ पढ़ लिया, हम सब कुछ अपनाएंगे। जहां जरूरत होगी अपनी सर्वनाम बन जाएंगे जी, सर्वनाम बन जाएंगे जी, सर्वनाम बन जाएंगे। तो इसमें भी देखिएगा जो जीवन कौशल आ गए, है ना, एक संदेश आ गया, है ना, संबंधों की मधुरता पे बातचीत हो गई, जीवन की जड़ों से जुड़े रहने पर बातचीत हो गई। हमें काम आना है, दूसरों के काम आना है, केवल अपने तक जीवन ना सिमट जाए, इसका भी संदेश हो गया। पढ़ा रहे हैं व्याकरण, बात कर रहे हैं लाइफ स्किल पर। तो हमारा जो पाठ्य सामग्री हो ना, पाठ्य सामग्री हमारे नवाचार सब बहुत चिंतन किए हुए होने चाहिए। और कब कौन सा बच्चा कौन सी पंक्ति लेकर चला जाए आगे, जिस अधिगम प्रतिफल की मैं बात कह रहा हूं ना, वो ऐसे ही मिलता है। कौन सी पंक्ति कब उसके जेहन में उतर जाए, मन में बैठ जाए, आत्मसात कर ले, आगे जीवन में काम आए। आपने सर्वनाम पढ़ा दिया, आगे कभी जरूरत पड़ी समाज को उसकी, सोचेगा, एक बार चिंतन करेगा, सर्वनाम बनना है ना, सर्वनाम बनना है, निपात बनना है मुझे, है ना। तो ऐसे समाज के लिए कार्य करना है, समाज के लिए निपात बन के कार्य करना है, समाज के लिए सर्वनाम बनकर कार्य करना है ना। तो कहना चाहिए व्याकरण है, लेकिन व्याकरण के साथ में बहुत सारे हमें, हमारा चिंतन जो है वो व्यापक होना चाहिए। अगर चिंतन व्यापक हो गया है तो फिर बहुत कुछ शिक्षण के माध्यम से हमें मिलता है ना। हमारे बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर जाकर आसीन होते हैं और वो हमारे संस्कार याद रखते हैं। तो आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, एक बार बताइए। और गीत के बारे में भी बता दीजिए, गीत आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सर सबके। प्रतिक्रियाएं ऑलरेडी आ रही हैं। जब आप जो है इसकी व्याख्या कर रहे थे तभी ऑलरेडी आना शुरू हो गया था सर। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत ये धन्यवाद। बात तो अच्छी है सर, हमारे पार्टिसिपेंट्स में पर वो जुड़े रहते हैं, उनका ये स्नेह जुड़े है ये। रहते हैं, दिल से अच्छा, जुड़े रहते हैं। हाँ वास्तव में सभी हिंदी सेवी भाई बहनों का ये स्नेह है। जी गीत लिखा जाता है तो यही सोच के लिखा जाता है कि भाई बहनों का बहुत स्नेह मिलता है ना, कि तेजी के साथ एकदम गीत प्रचार प्रसार पा जाता है, पूरे भारत में चला जाता है, खाड़ी देशों में चला जाता है ना। तो आपका स्नेह है जो माँ शारदा की कृपा से ये कागज पर उतर आता है ना। आगे आगे बढ़ते हैं। जी सर। संज्ञा गीत R1 R2 और R3 के लिए हम क्या करें, R3 में तो नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बन रही है ना कि हम कैसे उन बच्चों को सिखाएं। तो बहुत सरल तरीके से उनके लिए क्या कहेंगे, उनके लिए हम कहेंगे शालू शोभा श्याम जी, सेब संतरा आम जी, हरियाली खुशहाली जी, पेड़ तना और डाली जी, बरगद नीम बबूल जी,
बगिया पौधे फूल जी, गेंदा कमल कनेर जी, हाथी भालू शेर जी, बस्ता पेन किताब जी, जूता और जुराब जी, शिमला नैनीताल जी, तिब्बतिया नेपाल जी, नाम सभी हैं जान लिया, संज्ञा को पहचान लिया, संज्ञा को पहचान लिया जी, संज्ञा को पहचान लिया। यह है आर्थिक के लिए, है ना, बिल्कुल सरल, जहां कोई भेद नहीं है। बस उनको तो क्या सिखाना है, उनको सिखाना है, अवधारणा सिखानी है, तो अवधारणा हमारे बच्चे सीख जाएंगे, है ना। आ, बहन आप गाएंगी, पूजा बहन, इसी तर्ज पे, इसी उस पर। संज्ञा जी सर। कहते नाम को, आप एक बार इसको पढ़ के सुनाए। जी सर। संज्ञा कहते नाम को। हाँ जी। संज्ञा कहते नाम को, सेब संतरा आम को, रुपया पैसा दाम को, काजू और बादाम को, तोता बया चकोर को, तीतर कोयल मोर को, पिंटू पुलकित अन्नू को, मिंटू मोहित मन्नू को, बंदर हाथी भालू को, भिंडी गोभी आलू को, दिल्ली और भोपाल को, शिमला नैनीताल को, शीशम पीपल शाल को, झील नदी और ताल को, दया प्रेम उल्लास को, सच्चाई विश्वास को, संज्ञा क्या है जाना जी, खूब सही पहचाना जी। बहुत ही सुंदर 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 प्रस्तुति, वास्तव में। आप सबको प्रस्तुति कैसी लगी पूजा बहन की? एक बार बताइएगा। अब बहुत सुंदर सुंदर जी, एक बार आशा आपकी करती ताली हूँ हो अच्छी जाए। लगी होगी सर। जी, 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 बहुत सुंदर, जी सर, जी बहुत सुंदर। सर। हाँ जी। थैंक यू अब मधु आगे, मैम, थैंक यू रजनी हाँ, मैम। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, जी ये सर। R3 के लिए हो गया। हमारे पास सामग्री हो ना, तो हम R3 R2 R1 अपने आप आएगा। अब ये R3 में नहीं है सिलेबस में व्याकरण, लेकिन हम बच्चों के साथ जॉयफुल लर्निंग तो कर सकते हैं ना, अवधारणा तो दे सकते हैं ना उनको, अवधारणा दे दी। आगे देखिएगा आप, अब R1 R2 वालों के लिए, जहां उनको समझ होनी चाहिए क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या होता है जातिवाचक संज्ञा, क्या होता है ना, भाववाचक संज्ञा कैसे हम पहचानेंगे, उनके लिए भी गीत है। अब देखिएगा आप रैप स्टाइल में इसको, बच्चे रैप स्टाइल में गाते हैं, मैं तो अपनी स्टाइल में गा रहा हूं, है ना। चुटकी में संज्ञा पहचाने, बस नामों को संज्ञा माने, हो विशेष गर कोई नाम, वह व्यक्तिवाचक श्रीमान, एक सचिन और एक है लारा, एक है चंदा एक ध्रुव तारा, एक हिमालय एक है दिल्ली, अब न उड़े संज्ञा पर खिल्ली। एक व्यक्तिवाचक की शान, एक व्यक्तिवाचक की शान, बच्चों इसका रखना ध्यान, खूब बसा ले मन में इसको, बहुत सही है यह पहचान। और जाति लिए हैं शब्द वही, होते जिनके रूप कई, गमला गमले पत्ता पत्ते कथा कथाएं, बस्ता बस्ते सेब संतरा या अंजीर, हलवा या फिर यम्मी खीर, खेल फूल फल लता विटप, नाम जातिवाचक हैं सब, इनका वचन बदल जाता है, वचन बदल इनको पहचाने, और भ्रम ना रखना मन में कुछ भी, इन्हें जातिवाचक ही माने, इन्हें जातिवाचक ही माने, मौ से ममता मौ मिठास है, कुछ चाहने का नाम आस है, बचपन और बुढ़ापा हो या लगती सबको भूख प्यास है, भाव हर एक का है हरियाली, खुश खुश रहने से खुशहाली, ऊंचे से बनती ऊंचाई, बात समझ में अच्छी आई, ये सब नाम भाववाचक हैं, इनको सीखें समझे जाने, और नहीं भूलना बच्चों इनको, बिल्कुल सही सही पहचानने, बिल्कुल सही सही पहचानने, बिल्कुल सही सही पहचानने। है अच्छा, है अच्छा ये, आपकी प्रतिक्रिया है? बिल्कुल सर, धन्यवाद। आपने तो बच्चों के लिए वो बोलते हैं ना रैप बना दिया एकदम से, उनको भी मजा आ रैप हो जाएगा। गया, अब व्याकरण में रैप, है ना, तो हाँ, आनंद आएगा बच्चों को, वास्तव में आनंद और रैप आता है। करके आप सीखेंगे सर हिंदी। जी 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 जी, है ना। तो खूब। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम ऐसे प्रयोग कर रहे हैं, तो आनंद की अधिगमशाला बननी है, वो जॉयफुल लर्निंग दिखाई देनी चाहिए क्लास के अंदर, कि हाँ हर चेहरा खिला हुआ है, रैप कर रहा है संज्ञा पर, है ना। और जो हमारे R3 वाले बच्चे हैं, वो सहज रूप में उसको कितना बढ़िया वो बुना गया है, संज्ञा कहते नाम को, सेब संतरा आम को, तो वो वहां वही शब्दावली है, उसी स्तर की भाषा है ना, जहां और सहजता है। जी जी सर। सर और एक बात और है कि बच्चों को जो हम जैसे अभी संज्ञा हो गया या सर्वनाम या फिर एक जो हमारा एग्जाम्पल ना हमने ले लिया, ना का एक जी लेटर ले लिया, तो हम जी, उनको जो बताते हैं और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ना से नमस्कार होता है, ना से नल होता है, हाँ ना हाँ, से नाव होती है, तो वो ना उनको कब समझ में आता है। लेकिन आप अगर एक छोटी सी भी कविता बता देंगे, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, तो जब जी हम जी उनको छोटी सी कविता में बता देती थी उस लेटर से होने वाली, तो वो उस जो मैंने कविता सिखाई उसको गाते हुए पूरे कॉरिडोर में
में जाते थे। वो देखिए, क्योंकि वो हर जॉयफुल तक, लर्निंग हाँ। हो गई होगी है ना, जी उन्हें सर, जी मजा आ सर, रहा है तो उसमें, उनको आनंद आना मजा चाहिए। आता था। और उससे सीख भी लेते थे सर वो। बिल्कुल जी। जी। यस सर। और बहुत सुंदर। वास्तव में जॉयफुल लर्निंग हो जाए तो फिर आनंद आता है ना, बच्चों को फिर मजा आने लगता है कि उन्हें लगता है कि हाँ आनंद है इसमें भरा हुआ, है ना। तो ये, तो भाषा को जब भी पढ़ाएं, व्याकरण पढ़ाएं, रचनात्मक लेखन करवाएं, कुछ भी हम करवाएं, हम ध्यान रखेंगे हमें इतना जॉयफुल लर्निंग पर ध्यान देना है। विशेषण गीत R1 में है, आप देखिएगा बहुत जल्दी इस गीत को करते हैं, फिर हम चर्चा पर आएंगे, R1 R2 R3 से जुड़ी हुई चर्चा करेंगे, और विशेषकर R3 में कैसे मूल्यांकन किया जाए हम उस पर चर्चा करेंगे। अब देखिएगा इसमें इसमें भी सब कुछ आ जाएगा, है ना। R1 के लिए है, कोर्स 1 का है ये। सभी खूबियां बतलाता मैं, मुझे विशेषण कहते हैं, अंक सभी यह वह संज्ञा संग मेरे अंदर रहते हैं, तो 10 ज्यादा कम संख्या परिमाण बताया करते हैं, निश्चित और अनिश्चित इस कारण कहलाया करते हैं। और एक बात और अपने भाई बहनों से कह रहा हूं, हर गीत सुनवाना जरूरी नहीं है, गीत के अंदर सरल युक्तियां दी गई हैं, तो हम सरल युक्तियों का उपयोग अपने शिक्षण में कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा जो 5वीं लाइन आई, उसमें सरल युक्ति है, नवाचार है। कैसा कैसी कैसे से उत्तर पर गुणवाचक हूं मैं। अब कैसा, मान लीजिए मैं कहूं हरा भरा खेत, कैसा खेत, हरा भरा। लहलाती फसल, कैसी फसल, लहलाती, तो ये आ गया। तो ऐसे करके हम मान लीजिए कहें बहादुर सैनिक, कैसे सैनिक, तो बहादुर, है ना। परिश्रमी किसान, कैसे किसान, तो परिश्रमी। तो कैसा कैसी कैसे से उत्तर पर गुणवाचक हूं मैं, और कितना कितनी अंक बताएं तब संख्यावाचक हूं मैं, और नाप तोल जुड़ जाने पर मैं परिमाण बन जाता हूं। अगर कोई मापन इकाई जुड़ जाती है तो फिर वह परिमाण बन जाता है। यह वह संज्ञा संग खुद को मैं अलग रूप में पाता हूं। अगर यह वह संज्ञा के साथ आ रहा है, यह कार, वह खिलौना आदि, तो ये अपने को अलग रूप में पा रहा है, यानी सार्वनामिक विशेषण के रूप में पा रहा है। कैसे, ये वे इस उस इन उन ये सब संज्ञा से पहले आकर सर्वनाम भी गदगद होता रूप विशेषण का पाकर। तो अगर हम मैं कहूं ये लड़के, है ना, ये खिलौने, वे पेड़, तो कौन से पेड़, ये, कौन से लड़के, ये, है ना, ऐसे वाला उत्तर। वे पुस्तकें, कौन सी पुस्तकें, वे, तो ये वाला। तो जब ये वे इस उस इन उन ये सब संज्ञा से पहले आकर सर्वनाम भी गदगद होता रूप विशेषण का पाकर, और गुण संख्या परिमाण 3 गुण, और सार्वनामिक चौथा, जल्दी से बतलाओ बच्चों गीत लगा तुमको कैसा जी, गीत लगा तुमको कैसा। तो अवधारणा आ गई, हमने इसमें से वो ले लिया कि सरल युक्ति क्या है। हर समय अगर हम गीत नहीं सुनाना चाहें तो हर समय गीत नहीं सुनाएं, उसमें से सरल युक्तियां निकाल लें। आप मेरी बात से सहमत है तो यह गीत भी आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। एक बार बताइएगा। जी सर, जी, प्रतिक्रियाएं जो है आ गई हैं। आपके नवाचारी प्रयोग या नीति की अपेक्षा को सही दिशा दे रहे हैं। मेरा सौभाग्य है, तो बहुत बड़ी शालू बात मैम है। बोल रही हैं। जी, डॉक्टर नरेश कुमार कोहली, बहुत ही बढ़िया सर। मधु मैम, अति उत्तम। संध्या धन्यवाद। मैम, बहुत सुंदर। कामिनी मैम, सर मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, क्यों, मैं पूछ सकती हूँ? जी मैम, आप आप पूछ बिल्कुल, आप सकती हैं, हम आपको टाइम देंगे मैम। जी, उत्तम आगे सर, बढ़े। अति उत्तम। यस जी, सर, वी कैन। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आपकी प्रतिक्रिया जो कार्यशाला को आगे की ओर ले जा रही है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा उपसर्ग, ये दोनों में है, R1 R2 दोनों में है। उपसर्ग को देखें तो देखिए बिल्कुल सहज रूप में हमने बता दिया कि कैसे अर्थ में विशेषता लाने का कार्य करता है। अर्थ में विशेषता कैसे ला रहा है, अर्थ में परिवर्तन किस प्रकार ला रहा है। यहां पे देखिएगा अर्थ में कैसे विशेषता लाया। सुपुत्र है, पुत्र में जोड़ा सु जोड़ा तो सुपुत्र बन गया, कु जोड़ा तो कुपुत्र बन गया, अर्थ में विशेषता आई। अगर गंध शब्द ले लें और सु जोड़ दें तो सुगंध, उसमें विशेषता आई। दुर्गंध, अर्थ में विशेषता आई, अर्थ बदल गया। भार शब्द है, आ जोड़ा आभार, प्र जोड़ा तो प्रभार, अधि जोड़ा तो अधिभार। इस प्रकार जो अर्थ परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है उसको दर्शाया। अब यहां पढ़ा रहे हम उपसर्ग,
बात कह रहे हैं स्वस्थ जीवन शैली की। तो वास्तव में इस प्रकार का चिंतन हमारा हो जाए कि जब भी हम व्याकरण पढ़ाने के लिए जाएं तो हमारे पास उदाहरण इस प्रकार के हों जो जीवन शैली, है ना, भावात्मक जो कहना चाहिए भावात्मक संस्कारों की बात करता हुआ हमारे पास कुछ ऐसी सामग्री हो। हम कहीं ना कहीं वो भावात्मक पक्ष को कभी भी नहीं भूलें। मतलब कुछ भी पढ़ा रहे हो, हमारे पास भावात्मक पक्ष जरूर होना चाहिए, वो सबल होना चाहिए। अवधारणात्मक पक्ष सही है, हम अवधारणा सिखाएंगे, लेकिन साथ में वो जो भावात्मक पक्ष है वह भी चलता रहे। यहां पर वही है, हम बात उपसर्ग, हम अवधारणात्मक संस्कार दे रहे हैं उपसर्ग के, हम अवधारणात्मक संस्कार, भावात्मक संस्कार हम स्वस्थ जीवन शैली के दे रहे हैं, है ना, जीवन कौशल सिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, बिल्कुल यह चित्र योग द्वारा प्राप्त शारीरिक और मानसिक संतुलन का है। केंद्र में एकाग्र मुद्रा में लीन युवती और आसपास प्रकृति का जो सुरम्य वातावरण है मन को आनंदित करता है। ऐसे करके ये आगे बढ़ता है ना। और कैसे पूरे शब्द देखिए आ गए, यहां पर उनके अर्थ भी आ गए। क्या अर्थ कह रहे हैं, तुलित का अर्थ क्या होता है, रोग का अर्थ क्या होता है, धार क्या होता है, आप्त का अर्थ क्या होता है। प्राप्त में प्र प्लस आप्त है, प्र प्लस आप्त, तो आप्त क्या अर्थ दे रहा है, तो आप्त अर्थ देता है, मिला हुआ का अर्थ देता है ना। इसी प्रकार चायक क्या अर्थ दे रहा है, कृति, सार क्या अर्थ देता है। आगे अगर ईरित है, प्रेरित में प्र प्लस ईरित है तो ईरित क्या अर्थ देगा। तो ऐसे थोड़ा सा शोध, अन्वेषण, है ना, हमारा वो अध्येता भाव मन के अंदर बना रहना चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ना है। जब हम पढ़ेंगे हम अध्ययनशील बन जाएंगे, हम अध्येता रहेंगे, हमारे बच्चों को एक स्तरीय अधिगम मिलेगा, है ना, सहज अधिगम मिलेगा। स्तरीय सहज अधिगम, स्तरीय भी होगा। अब जब बच्चे जानेंगे कि हाँ इसका अर्थ तो ये निकल रहा है, आस क्या हो सकता है अर्थ, है ना, अय का अर्थ क्या होता है, तालमेल बैठाना होता है, सम प्लस अनु प्लस अय, तालमेल बैठाने के लिए समन्वय आता है ना। तो इस प्रकार के जब प्रयोग होंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे कहीं लाभान्वित होंगे। वो अन्वेषण, उनको भी कहीं प्रेरणा मिलेगी कि वो भी शोध करेंगे शब्द बना कैसे, इसमें इसका अर्थ क्या है, इस प्रकार। अब देखिएगा इसको भी गीत के माध्यम से करते हैं, है ना। उपसर्गों से परिचय होगा गीत सुमधुर सुमधुर गाएं, उपसर्गों से परिचय होगा गीत सुमधुर गाएं, सरस सरस सरल सानंद सीख कर हम संतुष्टि पाएं, अर्थ निहित होता है इनमें ये शब्दांश निराले, आगे जुड़कर मूल शब्द में अर्थ नया सा डालें, अर्थ बदलते कभी अर्थ में अभिनव खूबी लाते, करते हैं निर्माण शब्द का अनुपम खुशियां पाते, और अमर अजर अनुपम अविनाशी अनुरागी अध्येता, अभिनंदन अभ्युदय अभिनय आनंदित अभिनेता, संस्कृत हिंदी और विदेशी सब शब्दांश लुभाएं, अधिगम हो आनंद पूर्ण भाषा का लुत्फ उठाएं, अधिवक्ता अध्यापक अनगिन चिर प्रमुदित और आगे पूजा अधिवक्ता अध्यापक अनगिन चिर प्रमुदित और सहचर, बाइज्जत बेरोजगार खुशबू शब्दों की भरसक। ऐसे आगे आगे वाला देखें इसे, डिप्टी जज जनरल मैनेजर, डिप्टी जज जनरल मैनेजर शब्द सभी हैं अनुपम, नाहक एन वक्त हम राही कम सिन बरकत हम दम, इनको सीखें इन्हें जान ले मन आनंदित होगा, शब्द ज्ञान का बड़ा खजाना नित संवर्धित होगा, ये सारे ही शब्द बने हैं उपसर्गों से मिलकर, महकाते भाषा की बगिया फूलों जैसा खिलकर, जी फूलों जैसा खिलकर, जी फूलों जैसा खिलकर। तो इसमें यह भी दर्शाया गया है अनुपम शब्द बना तो कैसे बना, अन प्लस उपम से बना। तो वो लिखा हुआ भी आगे गया कि आगे उसको लिख के दिखाया गया है। देखिए पूरा गीत आप देखेंगे तो जगह जगह अभ्युदय है तो अभी से बना हुआ है। बच्चों के साथ इसको शेयर कर दें, बच्चों से कहें बेटा इसको लिखें और इन पर विचार करके लाएं कि यह शब्द बने कैसे, है ना। तो अनगिन है कैसे बना, चिर प्रमुदित है कितने उपसर्ग आ गए इसमें, है ना, अध्यापक कौन से उपसर्ग से बना है, दूसरा शब्द क्या होगा, ये सब गीत ही कहीं प्रेरणा दे रहा है अन्वेषण की, शोध की। आप मेरी बात से सहमत हैं?
आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी व्याकरण पर चर्चा चल रही है, हम पहले 9th का व्याकरण कवर कर रहे हैं। कि जो जो टॉपिक है आप अब समझ गए होंगे हमें कैसे पढ़ाना है। अगर मैं एक बार आपसे पूछूं कि क्या व्याकरण शिक्षण को इसके माध्यम से रोचक बनाया जा सकता है, ऐसी ऐसे जो नवाचार हैं, ऐसे जो लयात्मक नवाचार हैं, ऐसी जो युक्तियां हैं, क्या उनसे व्याकरण सरस बनेगा? एक बार बता दे मुझे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी सर, ऑलरेडी आ गई हैं, बिल्कुल जी 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 हाँ, जी, बिल्कुल सर, जी सर, बहुत खूब सर, सचमुच धन्यवाद आदरणीय अद्वितीय रचना, बहुत धन्यवाद बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बहुत अद्भुत, बहुत खूब, धन्यवाद बहुत अच्छा सर, अति उत्तम सर। धन्यवाद। जी अर्थ सर। के आधार पर वाक्य भेद R1 में है, यानी कोर्स ए में है। इसके साथ फिर हम चर्चा करेंगे अब, इसके बाद ही चर्चा करेंगे R3 का मूल्यांकन कैसे किया जाए। ये लगभग समापन प्रस्तुति है। आप देखिएगा, अगर इसको देखें, इसमें एक नवाचार है, अलग नवाचार है, विनी आई विप्र संग संग, है ना। उसके माध्यम से विनी आई विप्र संग संग, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक या संकेतवाचक या संदेहवाचक, ऐसे, है ना। तो सारे भेद हो गए। बच्चे को केवल याद रखना है विनी आई विप्र संग संग। और इसको गीत के माध्यम से करना हो तो कैसे किया जाएगा, अब देखिएगा, छोटा सा गीत, है ना, और ये आ जाएगा। क्या है वह गीत, देखिएगा। सूचना विधान है, वाह विस्मय पहचान है, मतना नहीं निषेध है, आज्ञा में निर्देश है, अनुमति है आदेश है, इच्छा चाह विशेष है, कैसे क्या से प्रश्न बने, शायद से संदेह गने, यदि से हो संकेत की बात, वाक्य से हमें हो बैठे याद, वाक्य हमें हो बैठे याद, वाक्य हमें हो बैठे याद। तो 2 4 5 पंक्तियों में आपने नवाचार किया। आपने नवाचार किया बोर्ड पर, सहजता लाए, अधिगम को सहज बनाया, उसके बाद प्रस्तुत किया। और बच्चों की जो प्रस्तुति आएगी, आप उसको क्या अंक देंगे, देखिएगा, मैं लेके आया हूं आपके लिए। मैंने बच्चों को फिर कहा, ग्रुप में बच्चों को बैठाया, मैंने कहा आप अपने वाक्य बनाएंगे बेटा, आप अपने वाक्य बनाएं। और देखिए उन्होंने क्या सृजन पर पहुंच गए। ब्लूम टेक्सोनॉमी का ये शीर्ष है, ये बच्चों की रचना है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये एक ग्रुप की रचना है। बाहर बादल छाए हुए थे और मौसम इस प्रकार का था, उन्होंने उसी पर बुन दिया। तो कहना चाहिए चैट जीपीटी वाले, एआई वाले युग में जब बच्चे इस प्रकार का बुन के दिखाते हैं सामने बैठ के, क्योंकि सामने तो नहीं है उसके सामने ना, एआई तो है नहीं जहां से उत्तर पूछ ले, यहां तो उसे बुनना पड़ेगा ना सामने कक्षा में। और सामने जब बुनता है बच्चा तब मन गदगद होता है। लगा कि ब्लूम ब्लूम टैक्सोनॉमी का शीर्ष है ये सृजन, और वहां तक पहुंच गए बच्चे। आज वर्षा होने के कारण मौसम बहुत सुहावना है, विधानवाचक वाक्य। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, विधानवाचक वाक्य। इसी प्रकार बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी, निषेधवाचक वाक्य। और गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी, निषेधवाचक वाक्य है ना। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते बच्चे कहां तक पहुंच गए। यदि, मतलब अब देखिएगा कितने वाक्य उन्होंने बना डाले, विस्मय भी बना दिया, है ना, आज्ञा भी बना दिया, कैसे जोड़ दिया उन्होंने। तो मैं चाहता हूं वास्तव में बच्चों की रचनात्मकता के लिए ताली होनी चाहिए इस समय। बच्चों ने भरपूर मतलब रचनात्मकता इसमें दिखाई है। तो ऐसे अगर प्रयोग हम करेंगे कि जहां बच्चे बुन के दिखाएं, और जब हम व्याकरण पढ़ा चुके हों तो बच्चे कुछ ऐसा बुन दें कि जो लगे कि हाँ, बच्चों ने वास्तव में उसे, उस अवधारणा को बिल्कुल आत्मसात कर लिया है, और उनका उनके द्वारा किया गया सृजन सामने आ रहा है ना। गरिमा बहन कह रही है मनोरंजक भी है जी, बिल्कुल। नहीं, आनंद आया था जिस समय उन्होंने पढ़ के सुनाया, उस ग्रुप ने, तो आनंद आया कि बच्चों ने। और इसमें बच्चे खूब हंसी मजाक करते हैं। एक बच्चा मजाकिया था, बहुत हंसाता था, तो उसने संदेहवाचक वाक्य बनाया था। मतलब बाहर तो बारिश हो ही रही थी, उसी पर उसने बनाया था कि सर संदेहवाचक वाक्य बनाऊं। मैंने कहा हाँ बेटा बनाए। तो पता है उसने क्या बनाया, उसने कहा शायद मम्मी आज पकोड़े बनाए। तो मैंने कहा इसमें संदेह क्यों आया बेटा, तो कह रहा बना भी सकती हैं और लगा भी सकती हैं। तो ऐसे करके मतलब आपने वातावरण कैसा बना दिया। सृजन चल रहा है लेकिन आनंदपूर्ण अधिगम है ना। तो सृजन भी चलता रहे, आनंदपूर्ण अधिगम भी होता रहे, बच्चा अपनी बात कहता रहे, जो हंसाने वाला है
वो हंसाता भी रहे, है ना। तो इस प्रकार का अगर शिक्षण होगा तो बच्चे संस्कार कहीं ग्रहण करेंगे। आप मेरी बात से सहमत होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है ना। अब हम आगे आगे बढ़े। अब तक के जो सत्र हुआ उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। अब क्योंकि शास्त्रीय सत्र रहेगा, क्योंकि जो लिखा हुआ है उसी को हमें बताना है कि अगर मूल्यांकन होना है R3 का तो किस प्रकार होना है, तो वो तो बिल्कुल वही बात होगी, है ना। बिल्कुल शास्त्र आधारित बातचीत होगी और जो नियम आए हैं उन नियमों को समझाना है। तो अब आप अब तक का सत्र मुझे बताएं कि अब तक का सत्र ये कैसा रहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी तालियां, मधुबन की तालियां आ गई हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी नीरू बहन। सिंह मैम जी अद्भुत सर, रजनी मैम सुपर, डॉक्टर और नरेश सर जी, अप्रीतम, नरेश जी जुड़े हुए हैं बिल्कुल जी। बहुत खूब सर, बहुत खूब, डॉक्टर मीनाक्षी छाया मैम जी, बहुत खूब, डॉक्टर छाया बहुत अच्छा, रीता बहुत बहुत सिंह बहुत सुंदर। जी सर, बहुत जी जी, अच्छा समझाया आपने सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस सर, स्टूडेंट्स खुश आपका होते हृदय हैं से ऐसे धन्यवाद। कामनी प्रयोग बहन से। जुड़ी हुई सुपर हैं सर। अलवर से, तो बहुत, अंजू दुबे बहन जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका हृदय हमेशा से की धन्यवाद, तरह सभी बहुत भाई ही बहन। बढ़िया सर। जी, धन्यवाद अंजू बहन। अंजू मैम बोल। जी जी, सभी भाई बहन जुड़ते हैं ना तो मन गदगद हो जाता है। ऋषिका बहन कह रही है प्रेरणादायक और रोचक, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। आगे बढ़ते हैं अब जी। अब देखिएगा, अगर हम चिंतित नहीं हो, हम R1 पढ़ा रहे हो, R2 पढ़ा रहे हो, चिंतित नहीं हो, व्याकरण का सहज अभ्यास करवाएं। देखिएगा एक उदाहरण, अगर हम इस प्रकार के प्रयोग करवा रहे हैं, अनुच्छेद ले लिया या अपने आप बना लिया, हमने अनुच्छेद किसी पाठ पर आधारित बनाया, ऐसे करके हमने व्याकरणिक अभ्यास करवा दिया। अनुच्छेद में किन्हीं दो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को चुनिए, वे साथ साथ खाते हैं, इस वाक्य में वे क्या है व्याकरण की दृष्टि से। उन्होंने दिखा दिया कि एकता में ही बल है, इसमें क्या है, निपात, निपात पहचान कर लिखिए, है ना। वे साथ साथ खाते और साथ साथ बैठते थे, वाक्य के रेखांकित अंशों में प्रयुक्त विराम चिन्ह का नाम बताइए, है ना, ऐसे वाले। उपसर्ग और प्रत्यय, कठिनाई में कौन सा मूल शब्द है, कौन सा प्रत्यय लगा है, अगाध शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। अनुच्छेद में प्रयुक्त उस मुहावरे को लिखिए जिसका अर्थ है भरसक प्रयत्न करना, है ना। समानार्थी शब्द, नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों के स्थान पर उनके समानार्थी शब्द लिखिए, अगाध, हिम्मत, आजादी। तो आपने क्या किया, पाठ पढ़ाया, पाठ के साथ ही अभ्यास करवा दिया, सहज अभ्यास हो गया। तो व्याकरण, व्याकरण का अवधारणात्मक संस्कार देना है, उसके साथ में भावात्मक पक्ष को भी सामने रखना है, संस्कार देना है, साथ में अभ्यास बहुत सरल तरीके से अभ्यास करवा देना है। तो देखिए स्तरीय शब्द आए, अगाध शब्द स्तरीय है। जब बच्चा विचार करेगा ना गाध का क्या अर्थ होता है, तब आनंद आता है, तब लगता है कि वो जो भाषाई संस्कार हैं वो उसके अंदर बैठ रहे हैं। तो ऐसे वाले शब्द भी आए, स्तरीय अभ्यास भी आपका बन गया, सहज है लेकिन स्तरीय है ना। तो ये दोनों ही चीजें इसके अंदर हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए उत्तर इसके आ गए। अब हम बातचीत कर रहे हैं कक्षा 9वीं के लिए R3 भाषा का की मूल्यांकन की क्या रूपरेखा है, कैसे हम मूल्यांकन करें, सहज रूप में कैसे मूल्यांकन करें। 4 चरणों में दिया गया। सबसे पहले ये देखें कि CBSE ने कक्षा 9 की भाषाओं के लिए NCERT द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को अपनाया है। R3 भाषा पाठ्यचर्या यानी मौखिकता प्रथम, ओरल फर्स्ट पेडागोजी दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें पढ़ने एवं लिखने से पहले सुनने और बोलने के कौशल के विकास पर विशेष बल दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम ये ध्यान में रख लें, जब हम R3 पढ़ा रहे हैं तो हमारा जो फोकस होना चाहिए, हमारा जो ध्यान केंद्रित पूरी तरह से होना चाहिए, वो मान के चले मौखिकता प्रथम है, यानी हम मौखिक रूप में करवाएं, मौखिक अभिव्यक्ति प्रमुख है, उसी का मूल्यांकन 40 अंकों का है। अब पहला चरण देखते हैं, मूल्यांकन योजना। आप देखिएगा यहां पर कुल अंक 100 है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। अब श्रवण एवं वाचन यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो यह है, श्रवण एवं वाचन कौशल, इसके लिए 40 अंक निर्धारित हैं। 40% इसी पर है कि वो श्रवण एवं वाचन कौशल पर। रचनात्मक लेखन 15 अंक का है, लेकिन रचनात्मक लेखन के लिए आप विषय देख लीजिएगा, विषय बेहद सरल होने चाहिए। अधिगम संसाधनों पर आधारित भाषा मूल्यांकन 30 अंक का है, और ये 30 अंक कैसे बांटे गए, 3.1 पठन कौशल 20 अंक का, लेखन कौशल 10 अंक का,
परियोजना कार्य 15 अंक का। अब इनको आगे पूरा विस्तार के साथ मैं स्पष्ट कर रहा हूं, जैसा सर्कुलर में दिया गया। आपने ये सर्कुलर देख लिया होगा, मैं यहाँ पर केवल एक चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों को, कुछ को नहीं भी पता होगा कि R3 में किस प्रकार का मूल्यांकन है। मान लीजिए सर्कुलर नहीं मिल पाया या कोई और कारण हो। वैसे तो जितने भी जुड़े हुए हैं सब अध्येता भाव रखते हैं, अद्यतन रहते हैं, तो उनको पता ही होगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट मिस हो रहा होगा तो इस प्रकार अगर हम आपस में चर्चा करेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम अनुभाग 1 पर, जो श्रवण एवं वाचन यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग का है। तो ये इन दोनों कौशलों का विकास हम कैसे करें, श्रवण एवं वाचन कौशल का, तो उसको देखिएगा। इन गतिविधियों का मूल्यांकन पूरे शैक्षणिक सत्र में विभिन्न कक्षागत गतिविधियों के माध्यम से किया जाएगा, यानी कक्षा स्तरीय हमारी गतिविधियां होंगी। निर्धारित सूची में से, अब इस सूची में आपके सामने रखूंगा, किसी भी निर्धारित सूची में से किन्हीं 8 गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक गतिविधि 5 अंक की होगी, तो ये 40 अंक इस प्रकार होंगे। अब वो गतिविधियां कौन सी हैं जो हमें 8 लेनी है? सुनकर निर्देशों का पालन करना अथवा प्रश्नों का उत्तर देना। हम इन्हीं को गतिविधियां मानेंगे। चित्र, वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा घटना का वर्णन करना। तो बोलने के अवसर हम काफी दें, अधिकाधिक अवसर हमारे बोलने के होने चाहिए। युग्म अथवा समूह वार्तालाप में भाग लेना। समूह वार्तालाप में 2 के बीच संवाद या समूह के बीच संवाद, ये अपना परिवार, मित्रों अथवा समुदाय का परिचय देना। व्यक्तिगत अनुभव किसी घटना को लेके या परिचित घटना का वर्णन करना। घोषणाएं, साक्षात्कार या लघु वार्ता सुनकर उत्तर देना। कोई घोषणा सुनी, उस पर हमने छोटे छोटे प्रश्न बना लिए। कोई साक्षात्कार सुनवाया, छोटा सा साक्षात्कार सुनवाया, लघु वार्ता सुनवाई, उसके बाद हमने उनसे उस पर प्रश्न पूछे, उनसे उत्तर लिए। और इस प्रकार ये गतिविधियां हैं। चित्र श्रृंखला के आधार पर घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन, चित्र हमने दिखाए, उनके क्रमबद्ध वर्णन उनको करना है। R3 कक्षा में पढ़ी सुनी गई कहानी का पुनः कथन, जो सामग्री बोर्ड ने उपलब्ध करवाई, NCERT ने उपलब्ध करवाई, रेवा, उसमें मान लीजिए निराला जी की कोई 2 जो लघु कथाएं दी हुई हैं, उनमें से अगर हम पढ़ी या सुनी गई कहानी का पुनः कथन, यानी पुनः वो आपके सामने सुना रहे, अपने शब्दों में सुना रहे। भूमिका, अभिनय, किसी भी पाठ को लिया, उसमें किसी पात्र का वह अभिनय कर रहे। परिचित विषयों पर संवाद, वाद विवाद, जो परिचित विषय हैं उन पर वाद विवाद, उन पर विचार विमर्श, है ना, ये सब। तो अगर हम अब देखिए आगे क्या लिखा, लचीलापन है, केवल यही पर्याप्त नहीं है। शिक्षक स्थानीय आवश्यकता एवं संदर्भ के अनुसार ऐसी अन्य गतिविधियां भी चुन सकते हैं जो विद्यार्थियों में R3 भाषा के प्रति रुचि विकसित करें। मान लीजिए हमें लग रहा है कि हमारे क्षेत्र में किसी विषय विशेष को बच्चे ज्यादा समझेंगे, तो हम उस विषय विशेष को लेकर आ जाएं। यहां लचीलापन है, ये नहीं कि जो बोर्ड ने उपलब्ध करवा दिया है हम उसी को करेंगे, लेकिन 40 अंक हैं। अगर हम इस पर चिंतन करें और बच्चों से थोड़ा सा हम घुल मिल के चलें और उनको प्रेरित करें, तो हमारे बच्चे ये 40 अंक का बहुत अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं और वो अधिगम स्तर के निकट पहुंचेंगे। जो निर्धारित अधिगम स्तर है किसी भी भाषा के लिए, जो क्रेडिट का निर्माण करता है किसी भी भाषा के लिए, तो उसको अर्जित कर पाएंगे। क्रेडिट का अर्थ हो गया किसी भी भाषा के अधिगम का जो पूर्व निर्धारित स्तर है कि हाँ इतना अधिगम हमें करवाना है, जैसे यहां पर हमने दिया, तो इतना बच्चा आसानी से सीख जाएगा, उस अधिगम को ग्रहण कर पाएगा, है ना। आगे अभी मूल्यांकन के मानदंड क्या होंगे? अभिव्यक्ति एवं संप्रेषण की स्पष्टता। हम ये मान लीजिए अगर वो 10 अंक का हम ले रहे हैं तो 2-2 अंकों में बांट लेंगे। विचारों का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण, उपयुक्त उत्तर एवं प्रतिक्रिया, उच्चारण, स्वराघात एवं वाणी का उतार चढ़ाव, शब्दावली एवं भाषा का उचित प्रयोग। ये अब आगे अनुभाग 2 पर आ गए। तो देखिए मेरा निवेदन है अपने भाई बहनों से, R3 सभी पढ़ा रहे हैं अब हम, है ना। तो R3 पढ़ाते समय विशेष ध्यान इसी का रखना है कि मौखिक अभिव्यक्ति प्रमुख है, 40 अंक उसी बात के उसको मिलने हैं और वहीं से भाषा उसके अंदर वो जो भाषा की समझ है वो विकसित होगी, तो इसको ध्यान में रखना है। अनुभाग 2 कहता है रचनात्मक लेखन हो, 15 अंक का हो। सरल कहानी लेखन
मान लीजिए प्यासा कौवा की कहानी, कछुआ और खरगोश। अगर ऐसे विषय भी जो बच्चे को सहज रूप में आते हैं, परंपरागत, वो सुन चुका है, अपने दादा दादी से सुन चुका है, मम्मी पापा से कोई कहानी सुन चुका है, उसी को हम सरल कहानी लेखन करवा रहे, या कोई मौलिक कहानी उसी से जुड़ी हुई एंड बदलने के लिए, ऐसा विषय वस्तु, संगठन, रचनात्मकता, ये यहाँ पर मूल्यांकन बिंदु भी दिए गए। दैनिक जीवन पर आधारित संवाद लेखन, बहुत सारे विषय हो सकते हैं। हम प्रासंगिकता, भाषा की उपयुक्तता, सुसंगति, कैसे जुड़ा हुआ विषय है या नहीं जुड़ा हुआ है ना, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो ये हमारा रचनात्मक लेखन यहां पर आ जाएगा। अब अनुभाग 3, अधिगम संसाधनों पर आधारित भाषा मूल्यांकन। हमारे अधिगम संसाधन जो दिए गए, जो हमारी पुस्तक दी गई रेवा की जो पाठ्य पुस्तक, जो अधिगम सामग्री है, अभ्यास कार्य है, यहां तक कि उसमें भी आप अपना जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई कविता पढ़ाई, आपने कोई पाठ पढ़ाया, आपने लघु कथा पढ़ाई, आपने हमारा आदित्य पाठ लास्ट वाला पढ़ाया। हमारा आदित्य में तो देखिए कितने सरल ढंग से, आपने देखा होगा, हमारा आदित्य अगर पाठ लें तो कितने सरल ढंग से व्याकरण सिखाया गया है। सहज अवधारणा बोध है, व्याकरण का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन वो कह रहे हैं विराम चिन्ह सिखाते समय देखिए कितनी सुंदर बात कही है, बहुत, कि भाषा की गाड़ी में मेरा ब्रेक सरीखा होता काम, छोटे छोटे चिन्हों वाला मैं भाषा का मित्र विराम, ऐसे ढंग से समझाया गया है ना। ड़ में अंतर वहां पर सिखाया गया हमारा आदित्य में, कबीर के दोहों में समझाया गया, निराला जी की जो लघु कथाएं हैं उनमें कितना प्यारा अभ्यास कार्य बन गया है। तो एक बार अध्येता भाव से हमें पुस्तक को देखना है, रेवा को देखना है। अगर रेवा को हमने ध्यान से देखा, और हम बार बार कह रहे हैं उसको अपने अनुकूल भी ढाल सकते हैं आप, कोई प्रश्न कठिन लग रहा है छोड़ दीजिए, जो सरल प्रश्न है आप उसको उठा लीजिए, बच्चों के साथ सरल आपने दिया। तो यहां पर वही है, अधिगम संसाधनों से लिए गए गद्यांशों पर आधारित पठन बोध, अलग से पैराग्राफ नहीं है, अपठित बोध नहीं है, अनसीन पैसेज नहीं है, सीन पैसेज है। 2 परिचित गद्यांश, प्रत्येक लगभग 100 शब्द, 2 अंकीय प्रश्न, 10 प्रश्न, 20 अंक, प्रत्येक गद्यांश में 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और क्या सत्य असत्य, बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान, मिलान, जोड़े मिलाना आदि, 6 अंक के, 4 अंक अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इस प्रकार ये जो बैठेगा, ये कितने अंक बैठ गया यहाँ पर, ये पूरा 10-10 अंक के 2 हो गए, तो 20 अंक इस प्रकार बैठ जाएगा, है ना। एक गद्यांश कितने अंक का, 10 अंक का। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 अंकीय प्रश्न, तो 2 में वही प्रश्न कितने डबल हो जाएंगे, तो 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे पास आए 1 में, और 4 हमारे पास अति लघु उत्तरीय प्रश्न आए 4 अंक के, ऐसा ही दूसरे के साथ में। तो हमारा जो टोटल हुआ वो 20 अंक हो गया, है ना। 20 अंक हम बड़ा मतलब सहजता के साथ पेपर बनाएं, और उनसे इसका हम उनका मूल्यांकन करें। आगे देखिएगा 3.2 लेखन कौशल 10 अंक, अधिगम संसाधनों पर आधारित लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 30-40 शब्द में 6 अंक के हो गए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 में से 1 प्रश्न का उत्तर लगभग 80 शब्द, 4 अंक का प्रश्न है। तो इस प्रकार अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो बहुत सहज हो जाएगा और बच्चे सहजता अनुभव करेंगे। परियोजना कार्य 15 अंक का है, परियोजना कार्य पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए होगा, 1 होगा। संभावित विषय क्या हो सकते हैं, स्थानीय रीति रिवाज, उत्सव एवं सामुदायिक जीवन, स्थानीय कला रूप, लोकगीत, कहावतें, लोक कथाएं, है ना, ये सब, मौखिक परंपराएं आदि। इसके बाद में प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, हाल की राष्ट्रीय पहले, स्थानीय स्तर के उल्लेखनीय साहित्यकार, कवि अथवा भाषा के अन्य महत्वपूर्ण योगदानकर्ता, ये विषय हो सकते हैं जिन पर वो परियोजना कार्य करके लाएगा। विद्यार्थियों को विद्यालय, पुस्तकालय, परिवार एवं स्थानीय समुदाय सहित विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो इतना कार्य है 100 अंक में। आपको ये जानकारी कैसी लगी एक बार बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार बताएं। सर इरावती भी है R3 में, गरिमा मैम पूछ रही हैं। इरावती संस्कृत में है, जब संस्कृत का सत्र होगा तो रीता निश्चित। सिंह मैम बोल रही हैं, सर कृपया कक्षा 9 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र की रूपरेखा भी बता दीजिएगा। रूपरेखा पहले से आई हुई है, लेकिन गौखंड की अभी तक नहीं आई है। तो गौखंड अगर बनाना पड़े, हमें मान लीजिए गौखंड बनाना है,
तो हम कैसे बनाएं? केवल जो 8 अंक के संचयन के प्रश्न हैं उनको हम क्या कर दें, उनके लिए हम या तो हम दीर्घोत्तरीय 2 प्रश्न लिख दें, 3 प्रश्न दें, बच्चों से 2 प्रश्न करने के लिए कह दें, 1 प्रश्न आप काव्य में से दे दीजिए, 2 प्रश्न आप गद्य में से दे दीजिए, या 1 प्रश्न गद्य में से 2 प्रश्न काव्य में से, आपके लिए आप जैसा चाहें, और उनमें से निर्देश दे दीजिए। 50-60 से अधिक शब्द सीमा नहीं रखिए, 50-60 शब्द सीमा, और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, तो 2 प्रश्न होंगे तो 8 अंक के हो जाएंगे। हमें 8 अंक का ही बनाना है, बाकी पेपर हमारा सेट है। जो संचयन पुस्तक हटी गंगा ही आई और दूसरी पुस्तक पूरक पाठ्य पुस्तक नहीं रही, तो उसके 8 अंक कैसे हम जोड़ें, उसके लिए सरल उपाय है, गंगा के ही काव्य खंड से और गद्य खंड से 4-4 अंकीय 2 प्रश्न ले लें, है ना। दीर्घोत्तरीय बना लें, क्योंकि पठित बोध हमारे पास पहले से है, पठित गद्यांश भी है, पठित पद्यांश भी है, तो बहुविकल्पी प्रश्न नहीं बनाए। आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न 4-4 अंकीय बना लें, बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं जी। और कोई? बिल्कुल। सर, अनुराधा मैम पूछ रही है कि पेपर 45 मार्क्स का होगा सर। नहीं, देखिए 45 मार्क्स का तो अभी देखिए, अभी जो हमने बताया यहाँ पे R3 की बात कह रही है, किसकी बात कह रही है? जी देखिए, अनुराधा मैम, प्लीज टाइप फास्ट। देखिए R3 उतने अंक का नहीं होगा। आप परसेंटेज देख लीजिए, अगर 10 अंक हमें लेखन कौशल के लेने हैं और 20 अंक हमें यहाँ पे पठन कौशल के लेने हैं, है ना, और साथ में हमें यहाँ से पूरा आप देखिएगा, पहले वाले से 40 अंकों का हमें ये लेना है, अनुभाग 1 श्रवण एवं वाचन कौशल, तो हमें इस पर बहुत ध्यान ध्यान से करना है। कहाँ पर हमें कितने अंक का बनाना है ये हमें देखना है। अधिगम संसाधनों पर आधारित भाषा मूल्यांकन 30 अंक का है, जिसमें पठन कौशल के 20 अंक हैं, लेखन कौशल के 10 अंक हैं। तो हमें 30 ही अंक का अगर हम पेपर बनाएं तो सही रहेगा। अगर हम पेपर को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसी अनुपात में बाकी आपको लाके फिर वो 30% में ही करना पड़ेगा। तो ऐसे जी बच्चों के लिए मैं ये बिल्कुल भी मुझे लगता है कि 80 अंक का पेपर नहीं बनना चाहिए। अगर 80 अंक का पेपर बनाएंगे तो फिर वो कहीं लेखन पर अधिक जोर आ जाएगा, बच्चे पे दबाव आएगा। तो हम जितना अंक हमारे बोर्ड ने निर्धारित किए हैं 20 और 10 30, तो उसी को करें। 15 अंक का तो हमारा परियोजना कार्य है, तो 45 तो उस हिसाब से बैठ रहा है। 20 जब हमने पठन कौशल के ले लिए, जिसमें हमने पठन बोध दिया, जो पठित बोध, जो पढ़ा पढ़ाया है उसी को हमने गद्यांश के रूप में लिया है, पठन जो पठित बोध है, तो वो 20 अंक का हो गया। लेखन कौशल जो हमारे प्रश्न हैं लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय वो हैं, बाकी 15 का तो परियोजना कार्य है। तो परियोजना कार्य को ना जोड़ के अगर हम केवल 30 अंक का पेपर बनाएं तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा रहेगा, बच्चों के हिसाब से सहज हो जाएगा। क्योंकि अंक बढ़ाएंगे, 60 अंक का करेंगे, फिर 30 में कन्वर्ट करेंगे तो भी बच्चों को फिर ज्यादा लगेगा, R3 के बच्चों को विशेषकर। जी सर। गरिमा मैम, धन्यवाद सर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। पद्मावती मैम, मेरे उत्तर मेरे तर्क के भी 4 अंक दे सकते हैं ना सर? मेरे उत्तर मेरे तर्क के भी 4 अंक दे सकते हैं क्या सर, बिल्कुल ऐसा दे पूछ रही सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। 4 अंकीय प्रश्न वो बन सकता है, मेरे उत्तर मेरे तर्क के। तो अनुराधा बाकी मैम। प्रश्न अपने आप भी बना सकते हैं हम। बाकी गंगा तो वास्तव में एक सांस्कृतिक प्रवाह है ना, उसके अंदर वो भाषाई सांस्कृतिक प्रवाह के रूप में सामने आई वो पुस्तक। तो उसमें तो अभ्यास कार्य अगर देखेंगे तो स्तरीय अभ्यास कार्य है, तो उसमें से कहीं से भी हम 4 अंकीय प्रश्न ले सकते हैं और दिया जा सकता है उसमें जी। ओके सर। अंजू दुबे मैम कह रही हैं सर, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, R3 के बारे में बहुत कुछ स्पष्ट हो गया। मेरा सौभाग्य बहन, मेरा सौभाग्य अनुराधा मैम, राइटिंग सेक्शन 15+30 बुक से है सर। जी। 15 मार्क्स प्लस 30 मार्क्स बुक से है सर, ऐसा बोल रही है। नहीं, देखिए 30 मार्क्स बुक से है। हम्म, पठित बोध, अभी यहां पर आप देखिए, इसको बहुत गहराई से देख लें आप। यहां पर जो अधिगम संसाधनों पर आधारित भाषा मूल्यांकन जो ये है 3 वाला जो है क्रम, 3.1 और 3.2 ये ही है केवल जो रेवा पुस्तक है उस पर आधारित, जो अधिगम सामग्री पर आधारित। तो पठन कौशल और लेखन कौशल इसी का मूल्यांकन हमें करना है 20 और 10 में। बाकी तो 15 अंक परियोजना कार्य के हैं, और रचनात्मक लेखन के हमारे अंक हो गए 15, और श्रवण एवं वाचन के हो गए हमारे 40। तो इसको बहुत अच्छी तरह से, इसका एक बार इसको देखकर, इसको पूरा आत्मसात करके, आगे जो मैंने स्लाइड दिखाई हैं आप उनको भी अगर कहीं
एक बार बहुत गहराई से पढ़ लेंगे तो फिर वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखें, 30 अंक का ही पेपर बनाएं, 60 अंक का नहीं करें इसको। 60 करने के बाद हम 30 में कन्वर्ट करेंगे ना, बच्चों पर लोड पड़ेगा। जी। ओके, तो सर आपकी तरफ से सर हो गया है, सारे कवर हो गए हैं? मेरी तरफ से समय अगर अनुमति दे रहा है तो एक चीज और, हाँ चलते चलते, हाँ सर। ये वैसे हो चुका था, पहले भी मैं हाँ इस पर बातचीत कर चुका हूं। एक अनुरोध है कि ये जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, चाहे रेवा हो चाहे हमारी गंगा हो, इनमें क्या क्या चीजें हैं। जैसा मैं अभी कह रहा था, रेवा पूरे, गंगा हो चाहे रेवा हो, एक भाषाई प्रवाह उनके अंदर है, एक सांस्कृतिक प्रवाह है। तो हमें पांच और चिंतन करना है। मैं अपने भाई बहनों से बस समापन यहाँ पर चर्चा कर रहा हूं और एक अनुरोध कर रहा हूं। पांच और चिंतन क्या है इन दोनों पुस्तकों को समझने के लिए। दोनों पुस्तकों को पहले एक बार देखें, यानी रेवा अधिगम सामग्री और गंगा पुस्तक, पाठ्य पुस्तक। अध्येता भाव सबसे पहले मन में ले आए, एक अध्येता बन के इन पुस्तकों को पढ़ें, आपको मजा आएगा। वास्तव में एक पाठ पढ़ के देखें, आज मेरे कहने से, मेरे अनुरोध पर एक पाठ पढ़ के देखें मन से, एक अध्येता की तरह, अध्यापक की तरह नहीं, एक अध्येता की तरह पाठ को पढ़ के देखें। आपको आनंद आएगा जब आप, जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे अभ्यास कार्य, जैसे जैसे भाषा बोध, है ना, भाषा संगम, ये सब आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, तो आप आनंद आएगा, है ना। अध्ययनशीलता, जी अपेक्षा सर। कर रहा है आज, मतलब हमारी जो पुस्तकें आई हैं वो हमसे अपेक्षा कर रही हैं, हमारी अध्ययनशीलता चाहती है। दोनों पुस्तकें अध्ययनशीलता चाहती हैं, हम अध्ययनशील बन जाएं, पढ़ना शुरू करें। एक पाठ अगर हमने रोजाना पढ़ लिया, या हमने आधा पाठ भी पढ़ा, हमने 2 पेज भी पढ़े, तो बहुत कुछ अच्छा लगेगा। वो जो एक पुस्तकों के अंदर जो एक सांस्कृतिक प्रवाह में बहेंगे हम, तभी उस प्रवाह में बहने लगे, हमारा मन बहने लगे, तब हम हमें समझना चाहिए कि अब हमने इस पुस्तक को आत्मसात कर लिया है। जब तक पुस्तक आत्मसात नहीं होती, तब तक अधिगम प्रभावी हो ही नहीं पाएगा, अधिगम उतना सहज नहीं हो पाएगा, शिक्षण उतना प्रभावी नहीं बन पाएगा। तो मेरा अपने भाई बहनों से अनुरोध है, थोड़ा सा व्यस्ततम दिनचर्या में से 1 पेज का समय निकाल लें। 1 पेज रोजाना पढ़ेंगे ना, तो हम 2-3 महीने में उस पुस्तक को पढ़ लेंगे। और उसका फायदा ये होगा, जो पाठ हम पढ़ा रहे हैं उसको पहले पढ़ लें, तो पढ़ के जाए, आपको आनंद आएगा, शिक्षण प्रभावी बन जाएगा, अधिगम सहज हो जाएगा। क्योंकि पढ़ना तो अलग ही होता है, शिक्षण का प्राण है एक तरह से हमारा, हमारी जो अध्ययनशीलता है, हमारा जो अध्येता भाव है। मेरे अनुरोध को स्वीकार कर रहे होंगे मेरे भाई बहन, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि समापन चर्चा कर रहा हूं, इसके बाद बस समापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूर्णिमा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद सर, अब बहुत ही। जी सर। जी 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 बहन, पूजा बहन। नहीं सर, आप समाप्त करिए, फिर हम जी, शुरुआत करेंगे। आत्मसातीकरण। देखिए, अगर पुस्तक को हमने ही आत्मसात नहीं किया है, तो फिर पुस्तक, वो पाठ्य सामग्री सहज नहीं होगी। क्या लिखूं पढ़ाने वाले हैं, और हम आत्मसात करके ही नहीं गए मार्टेन को, हम आत्मसात करके ही नहीं गए एजी गार्डनर को, तो फिर तो पाठ सहज होगा नहीं। हम मतलब इस पर चिंतन ही नहीं करके गए कि तरुण कैसे भविष्य को वर्तमान में लेकर आना चाहते हैं, कैसे जो वृद्ध हैं वो अतीत को वर्तमान में लेके आना चाहते हैं, कैसे वर्तमान शुद्ध रहता है दोनों से। अगर हम इस पे चिंतन नहीं करके गए, हमने इसको आत्मसात नहीं किया, तो फिर समझिए कि शिक्षण बहुत कठिन हो जाएगा, प्रभावी नहीं बनेगा, अधिगम तो फिर बहुत दूर हो जाएगा। क्या लिखूं पे बातचीत में कर रहा हूं, क्या लिखूं एक बार आत्मसात करें। ऐसे ही अन्य पाठ संवादहीन पर जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचा पाए, उस संवेदना तक, जो पाठ की संवेदना है, उस संवेदना से जब तक बच्चों को जोड़ नहीं पाए, तब तक कठिन हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है, और मेरा निवेदन मेरे भाई बहन स्वीकार करते हैं, उसे ठुकराते नहीं है, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आत्मसातीकरण की अवस्था में आ जाए, पुस्तक का आत्मसातीकरण होना चाहिए, चाहे रेवा हो चाहे गंगा हो। आगे अवधारक बने, है ना, बच्चों के लिए तो हम अवधारक हैं। अन्वेषण करें, अगर हम ऐसा पुस्तक के साथ कर रहे हैं तो सुझाव भी दे पाएंगे, आगे अगले वर्षों के लिए हमारे सुझाव भी कुछ हो पाएंगे, है ना। आगे अनौपचारिकता, कक्षा में अनौपचारिक वातावरण लाने का प्रयास करें। जब हम
पढ़ा रहे हो किसी भी पाठ को, तो कहीं ना कहीं जो वास्तविक जीवन संपर्क है उसको जरूर ले आए। वह पाठ को अनौपचारिक बना देता है, वास्तविक जीवन संपर्क जरूर लेके आए। और अगर ऐसा होता है तो हमको 100% भाषाई संप्राप्ति लक्ष्य मिल जाता है। और मुझे विश्वास है, हम सबको विश्वास है, और कि हम ऐसा करेंगे कि अपने जो भाषाई संप्राप्ति लक्ष्य है उसे 100% करेंगे। एक बार मुझे जरूर वहां पे अच्छा सा थंब दे दे, है ना, कि हाँ हम ऐसा करेंगे। और निश्चित रूप से इस सत्र के लिए मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ सलाम सर का, रिजू सर का, है ना, पूजा बहन आपका, कि मतलब मुझे अवसर मिला और अपने भाई बहनों के साथ संवाद करने का अवसर हर बार मुझे गौरवान्वित करता है। जब भी मुझे संवाद करने का अवसर मिलता है मैं गौरवान्वित होता हूँ। तो आज भी विषय बहुत अच्छा था और मेरे भाई बहनों ने तन्मयता के साथ मुझे सुनाया, तो मैं गदगद हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Pooja ma'am, you can take up questions. Vinod ji finished, no? जी Presentation. जी जी, हाँ जी। जी जी सर। सर बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था सर, बहुत ही अच्छा था। और धन्यवाद। हमारे पार्टिसिपेंट्स ने भी बहुत ही बखूबी वास्तव से में अपना प्रतिभा जो बहुत। प्रतिक्रियाएं हैं उसमें पीछे नहीं हटे। और सर जब हमें ऐसा सपोर्ट मिलता है ना, वो प्रेज किया जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है और हम फिर चीजों को और अच्छे से वास्तव एक्सप्लेन कर पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी जी ओके जी, सर। ठीक है। हम अपनी प्रश्नोत्तर कालखंड की तरफ चलें सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। सलाम सर। अनुराधा मैम कब से बोल रही हैं सर? काइंडली अनम्यूट अनुराधा मैम। सलाम सर। यस अनुराधा मैम। मिस अनुराधा। यस। अच्छा, बहन जुड़ी हुई हैं अमृतसर से जुड़ी जी हुई हैं, जी अनुराधा सर। बहन। जी बहन, कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ। सब अच्छा बहन। सर मेरा एक डाउट था कि जो रचनात्मक लेखन है पहले तो रिटर्न में ही आता था, एग्जाम में ही होता था ऐड पेपर में, जी अब नहीं होगा वो ऐड? अब 30 का तो रेवा में से आ जाएगा ना क्वेश्चन पेपर। बहन, वो हम जहां पर मैंने वो बताया कि उसको अलग से, जैसे परियोजना कार्य है वो अलग करवा लें, लेखन वाला वो अलग करवा लें 15 अंक का, है ना, कि नहीं वो बच्चे तो पे हम जोर नहीं देना है। करवाएंगे। बच्चे पे जोर नहीं देना है। नहीं अगर वो हम तो मैं का आपकी बात मूल्यांकन से करेंगे परीक्षा में बैठा के हम पठन बोध का करवा लें, क्योंकि ये R3 के बच्चे ना, जो हाँ हिंदी तरभाषी प्रांत हैं, वहां वो सहज नहीं हो पाएंगे अगर हम उन पर बहुत अधिक दबाव डालेंगे भाषा का, लेखन का विशेषकर, तो फिर वो सहज नहीं हो पाएंगे। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है जहां पर पठन का है, पठन जो पठित बोध है, रेवा। 20 अंक का रेवा से उसको हाँ लें, और 10 अंक के हम उसी में से प्रश्न ले लें, तो हाँ बच्चे सहज सहज अनुभव कर पाएंगे। हाँ, बाकी वो तो तो, मेरे को क्लियर था, आपने जैसे भेजा था, आपको पर एक यही बार डाउट ध्यान था। होगा, सतत मूल्यांकन, एक जो सीसी आई थी, सतत मूल्यांकन प्रक्रिया, तो ये सतत मूल्यांकन प्रक्रिया का ही हिस्सा है। एक तरह से इन बच्चों को, जो R3 के बच्चे हैं, हम पूरे वर्ष परखते रहें। लेकिन अगर लिखित में हमें मूल्यांकन करना है तो रीवा या अधिगम सामग्री से वहां पर हम उनको पठित बोध ही दें, 2 पठित बोध और सहज प्रश्नोत्तर, उसी से उनका मूल्यांकन करें। जी, हाँ जी, ये बाकी तो तो क्लियर और हो चीजें हैं, मतलब उनको हाँ हम लिखने के लिए देंगे। देखिए, वो जो अधिगम क्रेडिट है वो तो पूरे होंगे ना भाषा के, जो हाँ जी अधिगम स्तर निर्धारित किया गया है R3 के लिए, कि इतना उनको सीखना है, भाषा का प्रयोग उनको आना चाहिए, लिखित में उतना आना चाहिए, बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से, बड़ा ही हाँ। अच्छी तरह से सोच समझ के बोर्ड ने भी और NCERT ने भी ये मूल्यांकन बिंदु बनाए, तो उनका हमें ठीक है, अनुपालन करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। सुनीता जी बोलिए, अनम्यूट। और पूनम, पूनम मैडम, यू कैन अनम्यूट। नमस्कार सर, विनोद सर नमस्कार। नमस्कार बहन, कैसी हैं आप? नमस्कार, मैं अच्छी मैं- हूँ। जी, सर आपने बहुत अच्छे से समझाया, सब समझ आ गया हमें। हम मेरा सब। सर्कुलर पढ़ के नहीं इतना समझ पा रहे थे। बस जी एक चीज और बता दीजिए, जैसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हैं, वो एक कंटिन्यूअस प्रोग्रेस होती है। जी तो ये जो हमने असेसमेंट्स लेने हैं अब, ये जी हमें जरूरी तो नहीं है ना कि हम फाइनल और हाफ ईयरली के नाम से ले, हम ये पूरा साल थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं ना?
बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ऐसा नहीं है कि अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। 30 अंक का ले सकते हैं। और देखिए अब उस पर भी निर्भर करता है, विद्यालय प्रबंधन पर भी। अगर विद्यालय प्रबंधन कहता है 30-30 अंक हमें 2 बार ले लेने चाहिए, तो 30-30 ठीक अंक है। 2 बार ले लीजिए, उसको 30% में कर दीजिए। फाइन। है ना, इस प्रकार ठीक का है है। सर, ठीक है सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद। और आप सही हैं। और कोई है? एक जी, कामनी बहन नहीं दिखाई दे रही हैं, वो बीच में प्रश्न उन्होंने कहा था, जब सत्र चल रहा था उसके बीच में प्रश्न उनका आया था। ओके। कामनी बहन अगर जुड़ी हुई हैं तो आप प्रश्न कर लीजिएगा। सुनीता, सुनीता प्लीज अनम्यूट। या प्रणाम सर। प्रणाम बहन। एक्चुअली मैं सर बैंगलोर में एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। हमारे जी यहाँ हिंदी R3 में रखा गया है, 6 से लेके 9th तक। जी। तो 9th का तो डाउट आपने क्लियर कर दिया सर, लेकिन 6, 7th और 8th को कैसे पढ़ाया जाए, कुछ आप मार्गदर्शन करेंगे सर? 6 के लिए देखिए, ये कहा गया, बोर्ड द्वारा कहा गया कि आप कोई भी अधिगम सामग्री अभी बनानी है। 9th के लिए भी आप देख रही हैं, मैंने जो बात की, रेवा पे अधिगम सामग्री पे ही बातचीत कर रहे हैं। तो जी कोई सर। कोर की पुस्तक लेकर आप उसका उसी से मूल्यांकन कर सकते हैं 6 में। ठीक है अभी सर। है ना, उसी आधार पर जी आप सर। मूल्यांकन कर दीजिए। और आने वाले समय में बोर्ड आपको ये अधिगम सामग्री उपलब्ध भी करवा सकता है। 6, 7, जी 8 सर। की भी सामग्री उपलब्ध हो सकती है ना। और सर एक डाउट क्लियर करना है, क्योंकि जी हमारे यहाँ बैंगलोर में ज्यादातर स्कूल मई में खुल जाते हैं सर। तो जी। हम उन बच्चों को, हमने ग्रेड 6 के लिए मल्हार दिया है और ग्रेड 7th का भी मल्हार R3 के दिया, लिए, जबकि R3 के रेवा लिए अभी मल्हार, आई है। सॉरी। R3 के लिए मल्हार। मल्हार पर हम उनको उस लेवल से यूज कर रहे हैं, पहले वो बुक्स आई नहीं थी सर, और यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन थे R3 को लेकर के। देखिए R3 के लिए बैन मल्हार कठिन हो जाएगी, लेकिन अब आप ये कर सकते हैं, जब बच्चों के पास पुस्तक पहुंच चुकी है तो अब जी सर। आप उनमें पाठों का चयन कर लीजिए। जो ठीक है। पाठ आपको लग रहा है ना सहज है, उन पाठों हाँ। को, हर पाठ पढ़ाना जी आवश्यक नहीं सर। है कि R3 पढ़ा रहे हैं आप। हमें ये ध्यान में रखना है हम सबको, जी सर। कि हम अगर R3 पढ़ा रहे हैं तो वहां सहजता होनी चाहिए, मौखिक अभिव्यक्ति पर बल है, तो हम उनमें से पाठ निकाल लें। जी सर। मल्हार में जो सरल पाठ आपको लग रहे हैं उसके और अभ्यास कार्य को आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, जी उसको सर। थोड़ा सरल अपने आप बना लीजिए, है ना। क्योंकि पुस्तक तो वो R1 R2 के लिए है, हम अगर हमने जी सर। उपलब्ध करवाई R3 में, तो फिर हमारा दायित्व थोड़ा सा बहन बन जाता है कि हम उस सामग्री को, जो सामग्री है अधिगम सामग्री, उसको थोड़ा सा जी सर। R3 के हिसाब से डाल ओके सर। और इनका कुछ ग्रामर हमने डिसाइड किया है क्या सर? व्याकरण में क्या क्या हो ग्रामर, सकता है ग्रामर ग्रेड इसमें 6? नहीं है, लेकिन मैं जैसे मैं सत्र के बीच में भी मैंने कहा था, सहज जी रूप सर। में जो बच्चे समझ जाएं। R3 के बच्चे हैं, सहज रूप में मान लीजिए ड और ढ में अंतर सिखाना है हमें, हम जी सिखा सर। दें। हमें की का अंतर सिखाना है, हम सिखा दें। इसी प्रकार व्याकरण पढ़ाएं, हमें संज्ञा शब्द के बारे में परिचय करवाना है, सहज रूप में बता दें कि नाम को संज्ञा कहा जाता है, नाम के बदले नाम को सर्वनाम कहा जाता है, तो वहां सहजता हो। व्याकरण का अलग से मूल्यांकन नहीं है। जी आप सर। पठित बोध में जरूर दे सकते हैं कि मान लीजिए आपने कह दिया 2 संज्ञा शब्द छांट के लिखिए, आप संज्ञा पढ़ा चुके हैं, तो वहां पर जी जरूर सर। आप कहें कि इसमें से नाम वाले शब्द आप बताइए, तो बच्चा नाम वाले शब्द बता देगा। वहां पर हम मूल्यांकन कर सकते हैं पठित बोध में, अगर हमने बच्चों को सिखाया है तो। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस सेशन से हम सबको बहुत मदद मिली है। इतना जी कंफ्यूजन था R3 R1 को लेकर के, जी। पर आज हमारा सारा संशय दूर हो गया सर। थैंक यू। बहुत बहुत सौभाग्य बहन, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर। और कामिनी, मिस कामिनी, कामिनी मैम प्लीज अनम्यूट। हेलो। हाँ हेलो। जी, गुड इवनिंग कैसी सलाम सर। कैसी हैं? गुड गुड इवनिंग। प्रणाम बहन, इवनिंग कैसी सर। कैसे हैं आप? हैं? मैं ठीक हूँ बहन, आप कैसी हैं? जी मैं बहुत अच्छी। सर जी। मेरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। जी बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है मेरे। जी जी फर्स्ट क्वेश्चन सर मेरा ये था कि जब मैं सर्वनाम करवाती हूँ जी। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में यह और वह इस्तेमाल होता है, और हाँ, वही निश्चयवाचक सर्वनाम में भी होता है। तो मैं सार्वनामिक में भी होता है, सार्वनामिक में भी होता है, और साथ में वो निश्चयवाचक में भी होता है। सर हाँ, सार्वनामिक का तो मुझे क्लियर है, नहीं लेकिन वो जब मैं संकेत कहाँ कहाँ आप बोल रही हैं, वो सार्वनामिक विशेषण के रूप में और सर्वनाम में अंतर पूछ रही हैं आप?
नहीं सर, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम में जब यह और वह आता है, हाँ, जी जी जी। और सेकंड आता है हमारा निश्चयवाचक में। हाँ तो मैं उसमें बच्चों को, मैं खुद समझ पाती हूँ, लेकिन मैं हाँ बच्चों को क्लियरली समझा नहीं पाती कि इनमें ये डिफरेंस है। तो क्या आप आप मुझे देखिए, कोई। बिल्कुल। अगर देखिए, जब भी पुरुषवाचक में आएगा वो ही, शी और दे के रूप में आता है। अगर हम जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ही, शी और दे के रूप में जब भी आएगा, अगर यह, वह और वे आया है, वह वे होंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। और अगर निश्चयवाचक सर्वनाम में है तो वहां पर हो जाएगा दैट और दोस। दैट और दोस के रूप में जब भी आ रहा है तो निश्चयवाचक बनेगा। ये हम अगर सहज रूप में बच्चों को सिखा दें, क्योंकि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो बहुत आसानी से सीख जाएंगे। जैसे मैंने कहा वह मेरा भाई है, तो यहां पर वह क्या है, पुरुषवाचक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। हम्म। अगर मैंने कहा वह किसकी घड़ी है, तो यहां पर वह क्या है, संकेत कर रहा है। निश्चयवाचक को हम संकेतवाचक भी कहते हैं। तो ये वह जो यहां पर आया, वह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार अगर हम बताएंगे, ही, शी, दैट और दे, दोज, इन दोनों, इन सब में अंतर समझा देंगे तो हमारे बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। सर एक क्वेश्चन मेरा ये था कि अ, अभी हमारे स्कूल में एक प्रॉब्लम आई कि जी ज्यादातर बच्चों को 10th क्लास का कुछ वो लोग बॉदर नहीं करते कि कितने मार्क्स आएंगे, कैसे पढ़ना है। वो लोग जी, अपना मस्ती करते हैं। तो ये तो बहुत सारे। ज्यादातर स्कूलों की समस्या है बहन, आपकी ही यस स्कूल सर। की नहीं है। जी तो हम जी बहुत सारे नए नए तरीके निकालते हैं उनको पढ़ाने के। जी तो क्या हमें अगर जैसे 2-3 years से मेरा 100 out of 100 नहीं आ रहा, जी तो क्या मैं अगर अनसीन पैसेजेस जी। और पठित गद्यांश और पद्यांश का अगर मैं ज्यादा अभ्यास कराऊं, या फिर मैं उनको ग्रुप डिस्कशंस ज्यादा करवाऊं, तो क्या ये बहन, बहुत अच्छा। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, एक तो 100, अगर आपके 99 भी आ रहे हैं और 98 भी आ रहे हैं तो वो 100 है। हम्म। क्योंकि 100 ना, किस इवेल्युएटर के पास कॉपी गई है, और ये इस पर भी निर्भर करता है ना। 100 बहुत से नहीं देना चाहते हैं। अगर हमारा बच्चा 99 ला रहा है, 98 ला रहा है, तो वो 100 की तरह ही माने जाने चाहिए। दूसरा, 100 लाने के लिए सबसे अच्छा उपाय आपने बताया ही अभी, अपने आप ही बताया, अपठित बोध का लगातार अभ्यास करवाएं, क्योंकि हमारे बच्चे वहां अंक गवाते हैं। अपठित बोध बिल्कुल। मतलब अच्छा दक्षता आधारित आ रहा है, तो वहां पर अंक गवा देते हैं। तो सबसे पहले तो उसका अभ्यास करवा दें। साथ में जैसे मैं 3 महीने पहले मैं भी वो शुरू करवाता हूँ, एक प्रश्न रोजाना गतिविधि, उसको नियमित रूप से करवाएं। उनके उत्तर भी मैं शेयर करता हूँ। व्याकरण का बहुत अच्छा अभ्यास हो जाए, रचनात्मक लेखन का प्रारूप वगैरह सारा स्पष्ट हो। मैं अगले वर्ष के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूँ, आपके बच्चों के 100 आएंगे। थैंक यू सो मच सर। मैं हमेशा खुद पर क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ। जी, नहीं थैंक्स अ नहीं, लॉट। आपके आएंगे बहन, थैंक्स अ लॉट। है ना। थैंक यू। और कोई है? अच्छा, बेंगलोर से मानसी राजकुमारी बहन सिल्वा जुड़ी मैम, हुई है। यू वांट टू आस्क? और वी हैव राजकुमारी, लास्ट जी क्वेश्चन। जी। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते बहन, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? सब सब ईश्वर की जी। कृपा, ठीक है। सर, मैं बस आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ कि आप हम टीचर्स के लिए तो वर्कशॉप लेते हैं, क्या कभी कोई प्रिंसिपल के लिए भी रख सकते हैं? क्योंकि हमें जो प्रेशर प्रिंसिपल की तरफ से मिलता है ना, उससे हम बहुत परेशान हैं। नहीं बहन, मैं तो बस वो लैंग्वेज मतलब अपने भाई बहनों 3 से जुड़ जाता हूँ तो मेरे लिए बहुत ही बात होती है, बाकी सर, प्रिंसिपल। लैंग्वेज 3 के लिए भी उनका कहना है कि आप लेसन प्लान भी बनाओ एंड ग्रामर भी वो पूरा अच्छे से चाहिए उनको, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी उनको। जबकि मैंने उनको बोला कि मैम, जो तृतीय भाषा होती है उसमें बोलना पढ़ना ये ज्यादा जरूरी है, कि बच्चा जी भाषिक कौशल है उसका, वो देखिए पढ़ बहन, पा रहा है अच्छे से, वो हाँ, बोल पा रहा है अच्छे से। अनसिन पैसेज है, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। जैसे मैंने आपका देखा अभी R3 के लिए जो जी आपने जी बताया शेड्यूल, केवल जी 30 मार्क्स का रीवा जी से देना है।
जी। बट जो मैनेजमेंट है वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है इस बात को, तो उसके लिए क्या हम कह सकते हैं, नहीं क्या मैं करना है मतलब ना, सर? आप एक बार बात करके देखिए। देखिए कोई भी है ना, जब तक हम बताएंगे नहीं, अपनी बात नहीं रखेंगे, तब तक अच्छा नहीं रहेगा। आप एक बार बिल्कुल विनम्रता से उनके सामने अपना पक्ष रखिए, पूरा पक्ष सर मैं, रखिए। हाँ हाँ, और ये पूरा बताइए कि मूल्यांकन का आधार ये है, ये सीबीएसई का है। और आप अपनी बात रखिए कि अगर हम 30 अंक का पेपर देते हैं या 60 अंक का पेपर देते हैं, 2 पेपर अगर बना लेते हैं, एक पहले सत्र में एक दूसरे सत्र में, तो ये उपयुक्त रहेगा और इससे बच्चे सीख पाएंगे। उद्देश्य जो है R3 सिखाने का, हम उस उद्देश्य को कहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो आप एक बार अपनी बात रख के देखिएगा। प्रबंधन, मुझे लगता है कि जब हम अपनी बात रखेंगे तो कहीं ना कहीं तो सुनेगा। 10%, 20%, 30% कहीं तो सुनेगा, सर जो आपने है ना। बताया सीबीएसई में ये आया हुआ है मूल्यांकन आधार, ये कहीं वो है आपके क्या, पास में, किसी सर्कल? बिल्कुल मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। ग्रुप पर हम ये ठीक है। सर्कुलर, सलाम सर ने भी शेयर किया था बीच में जब आया था। ये शेयर हुआ है हमारे ग्रुप पे, बीटेक ग्रुप पे शेयर हुआ है। मैं भी शेयर कर दूंगा। हिंदी में नहीं आया, इंग्लिश में आया। हिंदी में तो मैंने अनुवाद कर लिया, है ना। तो बाकी अच्छा, ये इंग्लिश में आया है और हम आपके साथ शेयर कर देंगे। मैं आपके पर्सनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। समापन किया जाए सर। हाँ जी, एक वंदना जी। अच्छा अच्छा, और अच्छा जी, अभी अभी फिर प्रश्न लेते हैं। गुड मैंने इवनिंग सोचा सर, कि जय श्री प्रश्न समाप्त हो कृष्णा। गए। जी जी बहन, कैसी हैं? गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सर। आपको भी अनंत हार्दिक शुभकामनाएं बहन। जी सर, मुझे ये पूछना है कि जो एक आपने कहा मूल्यांकन वाला इंग्लिश में आया है, तो वो हिंदी में मुझे भी भेज दीजिएगा। ये एक हिंदी में निवेदन मैं है। भेज दूंगा, ग्रुप पर शेयर करूंगा। आप बीटेक ग्रुप पर हमारे जी जुड़ी हुई हैं। जी जी, तो मैं उसमें हिंदी वाला शेयर कर दूंगा। हिंदी वाला भी जी। शेयर कर। और जी, और जैसे आपने हमें उपसर्ग, विशेषण, ये संज्ञा, सर्वनाम बताए, वैसे ही सर पदबंध और शब्द और पद का भी अगर आपको समय मिले तो नेक्स्ट वो मीटिंग में थोड़ा सा अगला विवरण दीजिएगा। मतलब अगले एक एक 1.5 महीने मुझे हाँ, दे दीजिएगा। समय का एक, भी है अभाव ना। है। तो थोड़ा जी अगली जब कार्यशाला रखेंगे तो उसमें हम 10वीं में व्याकरण को कैसे पढ़ाएं उस पर कर देंगे, है ना। जी, बहुत जी बहुत जी, धन्यवाद। बिल्कुल। उसमें सारी वो भी बिल्कुल लयात्मक है, जैसे पदबंध कैसे पढ़ाएं, रचना के आधार पर वाक्य भेद कैसे पढ़ाएं, यहाँ तक कि समास कैसे पढ़ाएं, वो पूरा काव्य में है। 6 के 6 भेद काव्य में। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। Okay, thank you. And Pooja ma'am went for dinner. She came back. No. Okay. सर आज की जो हमारा इंटरनेट ना हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हम विनोद सर का भी साथ नहीं दे पाए काफी देर तक। उसके लिए मैं बहुत क्षमा नहीं चाहती हूँ नहीं नहीं, विनोद सर आज के लिए। ये होता है तकनीकी, तो कहीं भी हो सकता Okay. है, व्यवधान आ जी सकता है। सर, आज का यहाँ का मौसम भी कुछ जो है जी, अलग ही है, तो मुझे लग रहा है उसकी वजह से सर ये हो रहा है। और बहुत एक अच्छा क्षमा we चाहती हूँ। have a gentleman राजेश कुमार। राजेश कुमार जी आइए, बताइए। राजेश कुमार सर, यस सर, यस सर। जी। Mr. Rajesh Kumar, please unmute. Yeah, please go ahead. शुभ संध्या मोदिया जी। शुभ संध्या, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छा हूँ, और सबसे जी सर, पहले गुरु पूर्णिमा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब मैंने पंजीकरण किया था गूगल आईडी पर, तो मैंने जी। प्रश्न भी लिखा था कि अभी जो एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड ने जो पाठ्यक्रम किया है 9th क्लास के लिए, उसमें उन्होंने ईमेल लेखन को हटा दिया है। आपके पास कब आया ये पाठ्यक्रम? अभी जो नया पाठ्यक्रम जो इशू किया है, गंगा पुस्तक है, और जो व्याकरण जो पुस्तक बनी है उसमें नहीं नहीं, पहले। पाठ्यक्रम तो देखिए, पाठ्यक्रम सीबीएसई जारी करता है। हम्म, पाठ्यक्रम अभी सीबीएसई ने जो जारी किया उसमें है। आपके साथ में शेयर कर दूंगा। आप जुड़े हुए हैं ग्रुप पर? नहीं नहीं सर, नहीं सर, कक्षा 9th के अंदर की बात करूं, कक्षा 10 में तो ईमेल लेखन है, नहीं ईमेल नहीं, राइटिंग। कक्षा 9वीं में नहीं, मैं 10वीं की बात कर रहा हूँ। हाँ, 10वीं में ईमेल लेखन है। जी यस सर। कक्षा जी 9वीं में पहले था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। तो मेरा प्रश्न यही था कि क्या बच्चों को अभ्यास करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो 10वीं क्लास का बेस है उनके लिए, तो जी। वो हटाया गया है। देखिए पाठ्यक्रम बनाते समय ना बहुत सारी बातें होती हैं, है ना। तो पाठ्यक्रम समिति वैसे अच्छा कार्य करती है, हर बार अच्छा पाठ्यक्रम हमें दे रही है। अगर हटा दिया है तो हमें फिर 10th में हम उसको पढ़ाएं। हम्म, समिति ने कुछ न किसी विषय पर विचार किया होगा और सोचा होगा कि एक ही वर्ष में अगर हम इसको करवा दें
तो पर्याप्त होगा। तो इसलिए उन्होंने वहां से हटा के 10वीं में किया होगा, है ना। 10वीं में तो अभी है, 10वीं कोर्स बी में ईमेल लेखन है। तो जो भी संवाद पाठ्यक्रम इस लेखन, समय सूचना आया है, लेखन तो उन्होंने अलग अलग करके दे दिया। किसमें? संवाद लेखन और सूचना लेखन और संदेश लेखन, सॉरी, संदेश लेखन और सूचना लेखन को उन्होंने सेपरेट करके दे दिया, अलग अलग करके दिया है। पहले वो 24 में आया करता। हाँ, तो देखिए, जो जो नवीनतम पाठ्यक्रम आया ना, उसका हमें अनुकरण करना पड़ेगा, है ना। जो जो सीबीएसई जारी कर चुकी है, और उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, और वहां पर विचार किया जाता है। पाठ्यक्रम बना रहे हैं, वहां जो समिति बैठी हुई है वो गहराई से विचार करती है। तो जो एक बार जारी हो जाए ना, तो फिर हमें सबको ही उसका अनुकरण करना चाहिए, है ना। तो मेरा एक उसके क्वेश्चन और है, ये उसके है सरलीकरण पर, उस पर हम विचार कर सकते हैं, उसका प्रारूप क्या हो सकता है उस पर हम विचार कर सकते हैं, है ना। तो वो रचनात्मक लेखन पर हम अगली बार विचार कर सकते हैं। जब अगली कार्यशाला हमारी होगी, ये वेबिनार होगी, उस पर हम विचार करेंगे, इस पर गहराई से विचार करेंगे कि हम रचनात्मक लेखन में अपने बच्चों को कैसे बिल्कुल कुशल बनाएं, और कैसे प्रारूप बिल्कुल अच्छी तरह से बताएं। जी राजेश जी, धन्यवाद महोदय, है ना। मार्गदर्शन आप करने के लिए जरूर धन्यवाद। जुड़िए, मेरा ग्रुप से जुड़िए, आप बीटेक ग्रुप से जुड़िए, है ना। एक प्रश्न और है मेरा, ये कि जो बच्चे अभी मिडिल ग्रुप, मिडिल एज को, मिडिल सेक्शन को कवर करके 8 को 9 10th में आ रहे हैं, उन जी बच्चों की अशुद्धियां बहुत ज्यादा है हिंदी लिखने में, जी। श्रुत लिखने में काफी अशुद्धियां हैं। तो इसका जिम्मेदार मैं किसको ठहराऊं, या मतलब टीचर की आप जिम्मेदारी बताइए, है? इस प्रश्न का उत्तर आप पहले दीजिए, किसे देखो, ठहराया जा अगर सकता है? अगर हम बड़े लेवल पर हैं, हम सीनियर विंग में हैं, बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हाँ, हमें जो बच्चे मिलते हैं पढ़ाने के लिए, वो या तो मिडिल विंग से मिलेंगे, प्राइमरी विंग से मिलेंगे। देखिए, अधिगम रिक्तता जहां से भी आ रही है, उसके लिए जिम्मेदार तो हम ही हैं, हम सब है ना। हम सब जिम्मेदार होंगे। तो हम किसी विंग को नहीं थोपेंगे, मतलब कि इस विंग में कार्य नहीं हुआ, इस विंग में कार्य नहीं हुआ। हम की भावना से हम कार्य करें। हम का अर्थ ये हो गया, हम दोषी हैं, हम अधिगम रिक्तता नहीं पकड़ पाए, हम लर्निंग गैप्स समझ ही नहीं पाए। पहली से बच्चा दूसरी में आ गया, दूसरी से तीसरी में आया, तीसरी से चौथी में आया, एक प्रकार के लर्निंग गैप्स लेके वो बहते चले आ रहे हैं। वो लर्निंग गैप, वो अधिगम रिक्तताएं, कि किसी स्तर पर कोई समझने को तैयार नहीं, तो ये गलती किसी एक की नहीं हो सकती, ये हर विंग की, मतलब जितने भी पिछले पढ़ा चुके हैं उन सब की है। और अगर हमसे आगे भी देखा जाए, हम अगर 8 या 9 में पढ़ा रहे हैं, तो हमसे भी कहीं ना कहीं छूट सकती हैं वो गलतियां। अधिगम रिक्तताएं पकड़नी चाहिए, और उसके लिए मैं कई बार सत्र ले चुका हूं कि हम अधिगम रिक्तताएं पहचानें। अगर हमारा बच्चा सुलेखन नहीं कर रहा है, सुलेख नहीं कर रहा है, हम उसको पहचाने। इड़ौड़ हमें अंतर नहीं समझ रहा है, हम उसको पहचाने। की का अंतर नहीं वो जानता है, हम उसको दूर करने के लिए क्या नवाचार करेंगे, कैसे हम वो बिल्कुल सहज अवधारणा उनके अंदर पहुंचा दें। हमारा बच्चा लिंग की गलती कर रहा है, हिंदी तरभाषी प्रांत का बच्चा, उसको सुधारने के लिए हमने क्या किया। ये ना राजेश जी, एक पूरा शोध है। अगर मेरा सुझाव ये है, आप संकाय सभा में सभी को बैठाइए, और आरोप प्रत्यारोप नहीं किसी पर, बस एक निवेदन कीजिए कि हमें अधिगम रिक्तताएं दूर करनी है। हम आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं किसी पर, हमें करना है कि हम सब साथ हैं, और हमें अधिगम रिक्तताएं पहचान कर हर लेवल पर, सेकंड में क्या अधिगम रिक्तता है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है, सेवन में क्या है, उन पर हम कार्य करें, मिलकर कार्य करें, हम बनकर कार्य करना है। जी तो इसका राजेश, सुधारने के लिए कोई सुझाव होगा, या हम बच्चों को मतलब कैसे क्या अब करें कि देखिएगा, उनका? मैं एक सहज उदाहरण दे रहा हूं, और उस उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि नवाचार हमें विकसित करने होंगे। मान लीजिए हमारे बच्चे आ, की और की का अंतर नहीं समझ रहे हैं, ठीक तो है। हमारे पास क्या क्या तरीका है। तो हम मान लीजिए सेकंड के बच्चे नहीं समझ रहे हैं, थर्ड में आ गए, हमने उस अधिगम रिक्तता को पकड़ लिया है, तो हम कैसे सिखाएंगे। हमने तो कहा मैं, अगर मैं नाम अपने के लेवल पे बाद सिखाता हूँ, अगर है। मैं हूं तो मैं अपने लेवल पे सिखाऊंगा बच्चों को कि आपको की और बड़ी की और छोटी की में अगर अंतर करना है, तो मैं कैसे सिखाऊंगा कि मैं तो ये बोलता हूँ कि जब आप छोटी की का प्रयोग करते हो, तब आपको लगता है कि कुछ और आने वाला, सस्पेंस है कुछ। जैसे आपने बोला कि पिताजी ने कहा कि, तो हम्म आपको लग रहा है कि वाक्य अधूरा है, कुछ हम्म और आने वाला है। जहां पर आपको लग रहा है कि सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, कुछ और तो वहां पर आप छोटी की लगाओगे, और जहां पर वाक्य पूरा हो गया है या कोई हम्म। संबंध बता रहे हो, वहां पर आपका बड़ी की आएगा। हाँ, ये आपका देखिए शास्त्रीय, आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन अब इसी को सरल करना है तो हम क्या कहेंगे। शास्त्रीय बच्चे बहुत अधिक नहीं ग्रहण कर पाएंगे, अधिगम उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपने बताया परफेक्ट है, इसके लिए आपके लिए तालियां हैं, क्योंकि आपने उसमें थैंक कहीं यू। नवाचार भी मिलाने का प्रयास किया, जैसे की को सिखाते समय।
की का जब आपने बताया कि वाक्य के अंत में आएगी या फिर बीच में आएगी संबंध दर्शाते हुए, तो आपने बहुत अच्छा बताया। लेकिन इसी को अगर मैं दो चीजें और जोड़ दूं, मैं कहूं नाम के बाद की, काम के बाद की, यानी नेमिंग वर्ड्स के बाद में की आएगी और एक्शन वर्ड्स के बाद में की आएगी, तो बच्चे उसको सहजता के साथ, हमारे सेकंड के बच्चे समझ जाएंगे। तो हमारा वो जो लर्निंग गैप है वो फोर्थ में नहीं जाएगा, या फोर में चला गया तो यस सर। फाइव में नहीं जाएगा। तो हमें इस प्रकार कार्य करना है, नवाचार विकसित करने, शास्त्र को नवाचार के रंग में रंग कर अगर हम बच्चों तक पहुंचाएंगे, बच्चों का अधिगम सहज हो जाएगा, एक संस्कार ले लेंगे, अवधारणात्मक संस्कार। तो मुझे विश्वास है अपनी पूरी टीम पर, राजेश जी, मतलब जो हमारी टीम है पूरा हिंदी विभाग, आप मिलकर साथ बैठिए और इस प्रकार के नवाचार विकसित कीजिए, अधिगम रिक्तताओं को पहचानिए। मुझे विश्वास है कि ये बहुत अच्छा परिणाम देगा। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। Yes, Miss Pooja, you can wind up. Shall we, sir? Shall we Yes, wind yes, up? yes, yes, yes. Okay, Already sir. Vinod sir is very hungry. नहीं, नहीं। Actually, it's time for dinner, sir. Everybody हाँ will जी be जी जी hungry. हाँ जी। Yeah. नहीं, अब ज्यादा रुकेंगे भी नहीं, सभी भाई बहन भूखे होंगे। जी जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, यस हाँ जी। जी सर। अम, विनोद सर, आज के इस विषय पर हमें रूबरू कराने हेतु आपका बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद धन्यवाद भाई। हमारा सौभाग्य है कि हमें आप जैसे अ, अद्भुत यू नो टीचर का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मेरा आपका आशीर्वाद हम पर यूं ही बना रहे, निश्चित है। यही हमारी कामना है। धन्यवाद। सलाम सर। शिक्षक समूह के साथ हमेशा मजबूती से खड़े होने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बिजू बहुत पिल्लई सर ने शुक्रिया। बिजू पिल्लई सर ने अपने व्यस्त दिनचर्या में से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अंत में कार्यक्रम से जुड़े समस्त प्रतिभागियों को मेरा धन्यवाद, जिन्होंने बड़ी ही तन्मयता और धैर्य के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की और इसे सफल बनाया। सत्र के दौरान आप सभी की अपेक्षित सक्रिय भागीदारी प्रशंसनीय। चलते चलते समस्त प्रतिभागियों को अटेंडेंस और फीडबैक लिंक भरने हेतु अनुरोध करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी सलाह और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नवीन चर्चा व चुनौतियों के समाधान हेतु सलाम सर और विनोद सर के इस मार्गदर्शन में हम शीघ्र इस मंच पर पुनः एकत्रित हों। इस आशा के साथ मैं माननीय सलाम सर से सत्र के समापन की इजाजत चाहूंगी और कुछ खूबसूरत पंक्तियों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूं। Yeah, thank इजाजत है you. सलाम Thank सर। you. Thank you. जी सर। सत्र समापन हो गया। Thank you so much. विनोद सर, बहुत बहुत जी धन्यवाद। सर। It was a very हाँ interesting session as usual. जी, धन्यवाद। So, जी very creative, we should say very creative. The poems, you made the poems. A lot of effort is there. So all teachers have to, take you as a role model as you every day. I mean, मेरा सौभाग्य always सर। say the same, so that the classes will be very interesting. And one teacher was complaining pressures from principals. So if the classes are very interesting, if the students are happy, parents are happy, there will be no more pressure. So it is जी our जी responsibility to make our classes interesting, very creative, and we can plan the lessons the way Vinod sir always tells us. So we have to spend some time on our planning. Planning is very much important. We have to carry some, tools with you so that you can engage the children, and children will find it very, easy to learn Hindi. Only thing is that we have to teach Hindi through Hindi only, not through जी English or any other language, so that they जी will जी जी understand, they will start communicating, they will start जी। thinking also. Thank you so much, Vinod sir. Everybody, thank you so धन्यवाद। much, Pooja ma'am, for your great help, and keep, connecting with us. Thank थैंक you यू so much. सलाम Yeah, सर, thank बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं मुझे दो लग रहा है पंक्तियों को पूजा कहते बहन हुए दो पंक्ति सुनाना चाह रही हैं। जी 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 सर, जी जी सर, जी जी सर, जी। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जलाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। क्या बात है, धन्यवाद बहुत सर। सुंदर। very शुभ beautiful, रात्रि very सर। beautiful. Yeah. शुभ रात्रि। So, thank जी you. सर, Good night, स्वस्थ रहें everybody. सर, मस्त रहें और देश के विकास में यूं ही अपना योगदान देते रहें सर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर संचालन।
सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। सलाम सर और बीजू सर, पूजा बहन। Thank you, Pooja ma'am. Thank you. थैंक यू सलाम सर फॉर योर कोऑपरेशन। आज मैं बहुत बार डिस्कनेक्ट हुई। No problem. थैंक यू No सो problem. मच फॉर No योर problem. कोऑपरेशन। Thank you, everybody. Good night. Good night, everybody. गुड नाइट सर, गुड नाइट सर।